मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट, ताकि जिन जिन लोगों के ऑडियो में इश्यूज है, जिन जिन लोगों के वीडियो में इश्यूज है, वो एक बार आप लोग ठीक कर लीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आपको सेशन आगे जाके कोई इशू ना आए। अपने अपने माइक चेक कर लीजिए आप लोग, अपने अपने ऑडियो इक्विपमेंट्स जो आपने पुट किए हुए वो एक बार आप चेक कर लीजिए, इन केस अगर वो आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है राइट? मतलब मेरे को सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? मेरी आवाज़ आ रही है राइट आपको? जस्ट रेज द हैंड अगर मेरी आवाज़ आ रही है, आप तक पहुंच रही है। यस सर। क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए पहले, एंड उसके बाद शुरू करते हैं। मैं मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया मैंने, अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दें। तो मैं चाहूँगा कि इशिता से हम स्टार्ट करते हैं। इशिता, आपका गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपने बारे में ब्रीफ देना है, आप क्या करते हैं, क्या है एजुकेशन या जॉब अगर आप कर रहे हो, और क्यों डिजिटल आपको करने की इच्छा हुई है। Sir, actually, I'm a student from Bachelor of Designing in Animation. I've just completed my college from Artemisia College of Art and Design. And now I'm looking for some freelancing work in motion graphics and VFX. So for that, for how to pick up the work and everything in the field of designing, I've done this course. I I came to know about this through the newspaper article. And so I'm here. ग्रेट, ग्रेट वन। विशाल सर। बताइए। Sir, my name is Vishal, and I'm interested in digital marketing from last 2 years. I have searched many uh, uh, regarding to digital marketing, and my brother. ठीक है, और ठीक है, आई थिंक पर्पस जो है, आप बहुत टाइम से डिजिटल मार्केटिंग करने का सोच रहे थे, सो आई होप Yes, sir. From last 2 years. लास्ट ईयर। Yes. नाउ विल कम टू गैलेक्सी A6। आपको आवाज आ रही है हमारी? आप म्यूट पे हो। Yes, sir, you are audible. Yes, yes. Myself, Divyata Sharma, and I'm a HR manager in IT industry. Means I work with the startups basically. So in that, while working with the means as a HR manager, I go through many persons like profile. We have requirement of the digital marketing SEO, and we have different like content writer. So I found SEO and digital marketing is having a vast it is very vast, and I can learn a lot from, and it will be good for my career as well. With once I'll add on, I just want to explore myself, that apart from the HR department, I can explore, and I can work with the different domains. As right now there is huge demand for the digital marketing. If we talk about SEO, or we talk about content writer, or we talk about Google Run campaign, and etc. So just that is my interest, and that's why I'm here. ओके, आई थिंक मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितना स्कोप है, ये मेरा नेक्स्ट ब्रीफ था, तो मेरे को लगता है कि ये ब्रीफ अभी मेरे को बताने की ज़रूरत है। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको एलैबोरेट करके चीज़ें बताई है सब लोगों को, कि डिजिटल इंडस्ट्री में अभी कितना ग्रोथ हो रहा है, और कहाँ कहाँ पे कौन से
इंडस्ट्री स्पेशली जैसे आपने बताया SEO, गूगल एडवर्ड्स एंड पेड कैंपेनिंग, कंटेंट राइटिंग, हाउ दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. वेरी गुड थिंग दैट यू आर हियर. आई होप आपको ये सेशन से बहुत नई चीज़ें पता लगेगी एंड जो पुरानी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी. Yes. ठीक है. विल कम टू लक्ष्य. लक्ष्य, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है. Okay. You just brief us about yourself, what you do, and why you are here. Sir, myself Laksh Sharma. I belong to Indore itself and currently pursuing BCom first year and want to explore digital marketing. Why you want to explore this? Because sir, I am searching digital marketing since last many months and not knowing and not having any clear vision. Oh, And I am seeing a large scope in this. That's why okay. I want to make a career in digital marketing. Perfect, perfect. ठीक है. वर्षा, आपकी आवाज आ रही है आपको? If you could just can unmute yourself. हाँ, यस सर, आ रही है मुझे आवाज आपकी. अपने बारे में एक थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. आप क्या करते हो and if you're working and then why you want to learn digital. Myself Varsha Dhakar and I am pursuing from Indore Indira College. और मुझे ये कोर्स इसलिए करना है क्योंकि मैं एसईओ सीखना चाहती हूँ और मेरे भैया की कंपनी है, वो ट्रांसपोर्ट की वो जॉब करते हैं, मतलब उनका खुद का ही है. पर मैं एसईओ करना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि उनको अच्छे से प्रॉपर आता नहीं है और मुझे भी प्रॉपर आता नहीं. थोड़ा बहुत कर रखा है एसईओ, पर और थोड़ा सीखना है खुद के लिए, बस कंपनी के लिए. MI-A3 अगर आपको आवाज आ रही है हमारी. MI के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है आपके फोन में. MI स्टिल ट्राइंग सिंस लास्ट 10-15 मिनट्स बट उनको आवाज नहीं आ रही है. ठीक है, कोई इशू नहीं है. ठीक है. सो एक मिनट है, जस्ट अ सेकंड. चलो, सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट द डिजिटल मार्केटिंग. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है एंड क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए आपको, क्या क्या मिसकंसेप्शन है, कोविड का डिजिटल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, कोविड के बाद डिजिटल इंडस्ट्री कैसे होगी एंड आने वाला जो 5 से 10 साल है डिजिटल इंडस्ट्री नीचे रहेगी, स्टेबल रहेगी, ग्रो करेगी. और एज ए स्टूडेंट अगर आप ये सीखते हो तो आपका करियर कहाँ पे रहेगा. और अगर आप खुद का कुछ स्टार्टअप अगर लॉन्च करना चाहते हो, ठीक है, तो वो अभी नहीं करना चाहिए, बाद में करना चाहिए. वो वाली चीज़ों पे भी हम डिस्कस करेंगे. एंड अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो फ्रीलांसिंग के लिए बेस्ट टाइम है, अगर है तो कौन सी इंडस्ट्री में करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. और अभी आपके सवाल जो है ये सारी चीज़ें हम डेफिनेटली लेंगे. और अभी आप मेरे को पूछोगे कि सर आप ये सवाल के आंसर जो दे रहे हो तो आप क्यों दे रहे हो, मतलब आपकी क्या प्रोफाइल है. सो मैं आपकी थोड़ी प्रोफाइल बता दूँ. I done my MBA from Wellington. I done my graduation from Narasimhanji College. I done my digital marketing from Ireland. I have training students since last 6 years in digital domain. I train around 22,000 students across Asia, and I'm the only doctorate in India which holds a doctorate degree in digital marketing. And बाकी और भी ज़्यादा डिटेल्स और भी ज़्यादा स्टडी अगर मेरे आर्टिकल्स अगर आप पढ़ोगे विच इज़ बिन रेगुलरली पब्लिश्ड ऑन CNBC, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स नाउ, NDTV, तो आपको और भी अच्छे अच्छे पर्सपेक्टिव डिजिटल के अंदर मेरे मिल जाएंगे. I have written 2 books on digital. First is Social Media and Politics in India, which is India's only book written with the context of social media and politics, जो आप गूगल पे जाके देख सकते हो और Amazon पे लिस्ट है, वहाँ से खरीद सकते हो. मेरी सेकंड बुक जो है दैट इज ऑन फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, विच इज इंडियाज फर्स्ट एकेडमिक बुक ऑन डिजिटल, which got many positive reviews from the acclaimed academicians across India. So बहुत अच्छा प्रेज मिला है. और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली एक अच्छा सा बैकग्राउंड अगर आपको लेना है
सो ये मस्ट बुक है, आपके पास होनी चाहिए, जो बहुत सारे लाइब्रेरीज में इंक्लूडिंग IIM एंड IITs ऑलरेडी अवेलेबल है। सो अगर आपको बुक अगर देखनी है तो डेफिनेटली आप गूगल पे जाके देख सकते हो। एंड यही मेरी छोटी सी प्रोफाइल है, और मुझे बहुत छोटा सा अवार्ड मिला है, एशियाज बेस्ट डिजिटल मार्केटर। ऐसे 10-12 अवार्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं मेरे को मिल चुके हैं। सो मैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, बट आई बैक टू द टॉपिक। द रीज़न यू शुड नो दिस इज बिकॉज मैं अगर यहाँ पे कोई चीज़ बता रहा हूँ आपको, सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू। आई एम शेयरिंग विद द एक्सपीरियंस, इट्स नॉट दैट आई एम न्यू बी एंड जस्ट ब्लैबरिंग एवरीथिंग ऐसा वैसा। सो यू शुड एटलीस्ट ट्रस्ट मी व्हाट आई एम सेइंग। एंड हाँ, हो गया है सारी चीज़ें। ना बैक टू द टॉपिक। सो हम अभी स्टार्ट करेंगे कि ये डिजिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, उसके कंटेंट क्या क्या होते हैं, और क्यों ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। और हर एक टॉपिक के अंदर जॉब और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें जो है अभी मैं आपके साथ एक PDF जो है मैं आपके सामने शेयर करूँगा। सो उसके अंदर आपको सारी डिटेल जो है वो अभी दिखेगी। सो मैं अभी विदाउट एनी डिले आपको एक PDF शेयर कर रहा हूँ। आपको दिख रही है अभी यहाँ पे? कैन यू सी द PDF? Yes. परफेक्ट, ठीक है। सो अभी हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी वाइड इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बिकॉज डिजिटल के अंदर रेगुलरली मंथ ऑन मंथ, ईयर ईयर बहुत सारे नए नए एडवांसमेंट और ग्रोथ हर एक टॉपिक्स में आते गए, ठीक है। I would want everyone to kindly turn on the video, ठीक है। Please don't go into the the incognito mode, ठीक है। Kindly turn on your live mode on so that I can see you। मेरे को है ना ऐसा वो ऑफलाइन रह के है ना, मेरे से नहीं होती है बात, पता नहीं आप लोगों से कैसे होती है, मेरे से नहीं होता है कॉन्वर्जेशन। आई डोंट लाइक वॉचिंग माई सेल्फ स्पीकिंग द सेम थिंग इन क्लास 6 years। सो दैट्स द रीजन आई कीप ऑन टेलिंग पीपल, थोड़ा ऐसे वीडियो ऑन रखोगे तो मेरे को मजा आता है बात करना है, क्योंकि आई मीन सेशन गेट्स बोरिंग राइट। मतलब ठीक है यार, सीख लिया ऐसा तो मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। सो नाउ कमिंग बैक टू द डिजिटल। सो जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छी तरीके से लास्ट 5 to 7 years में ग्रो करी। क्यों ग्रो करी? बिकॉज अगर आप देखो इंडिया के अंदर पहले हम 10-15 साल पहले कैसा वो छोटा नोकिया का डब्बा यूज़ करते थे, अभी हम लोग यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, 4G 5G, देखा है सब लोगों ने। 5-10 साल पहले हमारे इंटरनेट के डेटा कैसे हुआ करते थे, एकदम 250 रुपये का 2 GB, 350 रुपये का 1 GB, ऐसे ऐसे पैक से हम रिचार्ज करते थे। हमको अगर किसी को मेल करना है तो एक पूरा एक घंटा लगता था अगर बड़ी फाइल है तो। आज के टाइम में वी हैव अ वेरी सुपीरियर डिजिटल टेक्नोलॉजी, वी हैव अ वेरी एडवांस स्मार्टफोन एंड वी हैव अ वेरी गुड विजन अंडर डिजिटल इंडिया, जो कहीं ना कहीं लेट डाउन किया है। और ये तीनों का यूज़ करके जितने भी स्टार्टअप्स अगर आप आज के टाइम पे देखो, आज आपने देखा रहेगा नाइका का IPO किन किन लोगों ने सब्सक्राइब किया, या किन किन लोगों ने, आई थिंक आपके आसपास लोगों ने कहीं ना कहीं अलॉटमेंट में डाला रहेगा। Paytm का IPO आ रहा है, अभी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स है जो IPO में आ रहे हैं। नाउ कैन यू जस्ट आस्क कि यार ये सारे कंपनीज जो है कभी स्टार्ट हुई, और ये सारी कंपनीज कौन से प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है? सो आपका आंसर यही रहेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ये जितने भी स्टार्टअप्स आप देख रहे हो, टीवी पे जिनकी ऐड दिख रही है, न्यूज़पेपर पे जिनकी ऐड दिख रही है, आपके आसपास कहीं ना कहीं जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ये सारी कंपनीज डिजिटल कंपनीज है। और ये डिजिटल कंपनीज आने वाले टाइम में रिलायंस और टाटा बनेगी, ठीक है। जो हम 20 साल पहले बोलते थे रिलायंस और टाटा, आज से 10-15-20 साल के बाद यही सारी कंपनीज रहेगी जो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जॉब्स क्रिएट करेगी, या तो यही सेगमेंट के अंदर आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी देगी। सो दिस इज हाउ द फ्यूचर वुड बी। द 2030 2035 वुड बी ऑफ द एरा जहाँ पे डिजिटल का बहुत ज़्यादा बोलबाला होगा, ठीक है। एंड इसी के अंदर डिजिटल, अगर आप कोई भी कंपनीज देखो, उनका कंप्लीट मार्केटिंग कैंपेन, कंप्लीट ब्रांडिंग कैंपेन और सेल्स कैंपेन मेजरली होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। यस और नो? यस और नो? Yes. ठीक है। आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, ठीक है, आपने या तो उनकी वेबसाइट पे विजिट किया रहेगा, या तो गूगल सर्च किया रहेगा, या तो उसके ईमेल्स आपको आए रहेंगे, या तो आपने सोशल मीडिया पे एड्स देखी रहेगी, या तो यूट्यूब पे एड्स देखी रहेगी, या तो आपने कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके उनके बारे में जाना है, ठीक है।
सो नाउ कैन यू इमेजिन कि अगर डिजिट कंपनीज जो है, ठीक है, इतनी ज़्यादा डिजिटल टूल्स और टेक्निक यूज़ कर रही है, तो जब भी ये डिजिटल टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करेगी तो उनके लिए भी वो डिजिटल रिसोर्सेज ही हायर करेगी, राइट? वो डिजिटल रिसोर्स हायर करेगी, वो ऐसे रिसोर्सेज हायर नहीं करेगी जिसके बारे में पता ही नहीं है. So if my company is going digital, I'll hire a digital professional. If I'm starting my agency, I'll prefer to launch on digital platform and I'll looking to hire a digital professional. Yes or no? Yes. Okay. So in that particular case, I look for a digital skill set. ठीक है. अभी इमेजिन करो इंडिया की टीम अभी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, ठीक है. अभी अगर उसको अच्छा बैट्समैन चाहिए तो वो बैट्समैन ही हायर करेगी ना, कोई बॉलर तो हायर नहीं करेगी. तो ऐसे ही केस के अंदर जब भी हमको अगर कोई रिसोर्सेज हायर करना है तो आई पिक कि वो डिजिटली उसको सारी चीजें आती है कि नहीं आती है, ठीक है. एंड यही से जो डिमांड होती है डिजिटल की वो ग्रो होना स्टार्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग दिस बॉटल, और अगर ये मैं बॉटल का एक वेबसाइट बनाता हूँ और मैं ये बॉटल वेबसाइट के थ्रू सेल करता हूँ, सो आई लुक फॉर अ पीपल जो ये पूरा मेरा डिजिटल बिजनेस इफेक्टिवली हैंडल कर सके और मेरे को अच्छे से सेल्स ला के दे सके. यस और नो? Yes. सो ये पूरी चीजें कौन करता है? सो डिजिटल प्रोफेशनल करता है. सो सीधा सा हिसाब है, अगर आप डिजिटल सीखते हो तो ये पूरे इकोसिस्टम में सेट हो गए. अगर आप डिजिटल की स्किल सेट नहीं है तो ये पूरे इकोसिस्टम से आप बाहर हो जाते हो. आपको पता ही नहीं है कि डिजिटल कैसे काम करता है. वो फ्लाइट जो है आप मिस कर चुके हो. सो आपको अपने आप से पूछना है कि आपको वो फ्लाइट में रहना है कि आपको फ्लाइट के बाहर रह के फ्लाइट को बाय बाय करना है. सो इट इज योर कॉल. सो नाउ इफ यू डिसाइडिंग कि बस मेरे को अभी फ्लाइट लेनी है, सो अभी फ्लाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको सीखनी है, वो अभी हम आपको एक एक तरीके से बताएंगे. सबसे पहले आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर दो वर्ड्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल एंड मार्केटिंग. बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो मतलब मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलता हूँ एंड लाइक काउंसलिंग के टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं. देन आई आस्क यार क्यों करना है डिजिटल. सो व्हेन आई आस्क आपको आपको आता है डिजिटल से ये, so बोले सर आई आई नो डिजिटल कैसे वर्क करता है, मैं रोज फेसबुक देखता हूँ, इंस्टाग्राम देखता हूँ, पोस्टिंग करता हूँ, मेरे को आती है डिजिटल में चीज़ें. सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो. सम नंबर वन, if you are master in just posting social media, if you are spending 24/7, you are not a digital marketer. Number two, digital marketing is not a technical. Digital marketing तो technical है, कोडिंग रहेगा इसके अंदर C++ रहेगा. मेरे को तो आता ही नहीं, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से, मैं तो MBA कर रहा हूँ, मेरे को तो आता ही नहीं है. ये एक कंसेप्शन लोगों के दिमाग में रहता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग is not about technical, it is a management concept. Okay, digital marketing, because marketing itself is a management concept. And because marketing digital platform पे कर रहे हो, क्यों digital पे कर रहे हो? Because traditional platform expensive है और अभी कोई traditional platform पे time नहीं spend कर रहा है. अभी आज अपने ही एग्जाम्पल आप खुद का लीजिए. आप सुबह उठते हो, आप आपकी जो पूरी दिन की जो दिनचर्या है, आप व्हाट्सएप देखते हो, सुबह उठते फेसबुक चेक करते हो, आप इंस्टाग्राम देखते हो, इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हो, अगर आपको न्यूज़ पढ़ना है तो आप इन शॉर्ट्स पे आ जाते हो, अगर किसी को अमाउंट पे करना है पेटीएम पे आते हो, शॉपिंग करनी है अमेजोन जबोंग मिंत्रा के पास जाते हो, आप ट्विटर पे आप आते हो, अगर कुछ मूवी देखनी है आप यूट्यूब पे आते हो, अगर आपको कोई सीरीज देखनी है आप अमेजोन या तो नेटफ्लिक्स के पास चले जाते हो, आप आपको ग्रोसरीज की शॉपिंग करनी है आप बिग बास्केट के पास आते हो, अगर आपको इंश्योरेंस लेना है आप एको के पास आते हो, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है आप क्रेडिट के पास आते हो, एंड अगर डिजिटल सीखना है तो डिजिटल गुरुकुल के पास आते हो. ठीक है. सो दिस इज हाउ बेसिकली योर एंटायर जर्नी हैज बीन. सो यू आर स्पेंडिंग अ टाइम ऑन डिजिटल. सो हाउ कंपनी विल स्पेंड, तो कंपनी क्या बोलेगी, अगर मेरा ऑडियंस ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है तो मैं ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे पैसा क्यों डालूं. मैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही पैसा डालूंगा ताकि कहीं ना कहीं मेरे तक लोग पहुंच सके और मेरा बिजनेस बढ़ सके. और ये चीज़ लोगों ने बहुत तभी महसूस करी जब भी कोविड-19 का लॉकडाउन लगा. सारे बिजनेसेस बंद हो गए, बट एक ही इंडस्ट्री चल रही थी एकदम धूम से, दैट वाज अ डिजिटल. जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस है सब लोगों के मेरे पास ऐसे कॉल टू कॉल आ रहे थे, सर हमारा मिठाई का शॉप है, हमारी वेबसाइट बना लो, सर हमारा स्वीट्स का शॉप है, हमारे लिए एप्लीकेशन बना दो. आई गॉट अ सीरीज ऑफ कॉल
कि सर हमको ये करा दो, सर एसईओ करा दो, ये कर दो सर हमको। और यही ऐसे लोग थे जो 2 साल पहले अगर उनको पूछते तो लोग बोलते अरे हमारा तो अच्छा चल रहा है बिजनेस, हमको तो क्या जरूरत है डिजिटल की, जमा जमाया बिजनेस है, क्या जरूरत है। एंड यही बिजनेस ओनर को जब कोविड लॉकडाउन लगा, देन दे अंडरस्टूड द पावर ऑफ, दे रियलाइज कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया, कि अगर हम तभी डिजिटल पे चले जाते हैं तो तभी के टाइम पे उनका बिजनेस सेट भी हो जाता, एंड कहीं ना कहीं उनके लिए बैकअप भी होता कि नहीं यहाँ से भी हम इनकम कर सकते। सो कहीं ना कहीं मार्केटिंग जो है ये आपको समझना जरूरी है कि मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग के टाइप्स क्या क्या है, और इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के टाइप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखना जरूरी है। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सो यहाँ पे यू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट कि मार्केटिंग एक्चुअली में होती क्या है, सेल्स एक्चुअली में होता क्या है, ब्रांडिंग एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। सो जब आप ये सारी चीज़ें समझते हो तभी आपको एक्चुअली पता लगता है कि हाँ यार कल जाके अगर मैं खुद की एजेंसी स्टार्ट करूँगा, खुद की मैं फ्रीलांसिंग एजेंसी स्टार्ट करूँगा, तो मेरी कंपनी के लिए भी मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना, मेरी कंपनी के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ ब्रांडिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा तो नहीं होगा मैं बस फेसबुक पे पोस्ट डाल दूंगा तो मेरे को क्लाइंट मिल जाएंगे, मैंने व्हाट्सएप पे स्टोरी डाली तो क्लाइंट मिल जाएंगे। आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो घर पे बैठ के बिजनेस कर रहे हो और पूरी व्हाट्सएप स्टोरीज है ना अपने प्रोडक्ट से फिल कर देते हैं, 40-50 स्टोरीज डाल देंगे और उनको ऐसा लगता है कि वो मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, उनको लगता है वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको पता ही नहीं है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है। सो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मतलब समझना जरूरी है कि मार्केटिंग होती कैसे है और मार्केटिंग कैसे वर्क करती है। अभी आप इमेजिन करो कि अगर आप वर्ल्ड कप में अगर खेल रहे हो, आप 20 ओवर की मैच खेलते हो, तो आप पहली ओवर में ही 6 के 6 सिक्स या 6 के 6 4 मार के सोचोगे कि नहीं यार मैं 20 ओवर में हर एक ओवर में 6 रन 4 रन मारूंगा, ऐसा होगा क्या? प्ले विद द स्ट्रैटेजी, राइट। स्टार्टिंग में 6 ओवर है, उसको स्ट्रैटेजिक टाइम आउट है, प्लेयर्स अंदर है, तभी हम थोड़ा एग्रेसिव खेलेंगे, फिर प्रॉपर खेलेंगे। डिजिटल के अंदर भी ऐसा है, डिजिटल के अंदर भी 20 ओवर की गेम है जहाँ पे आपको अलग अलग प्लेयर्स का इस्तेमाल करना है। वेबसाइट है, गूगल एडवर्टीजमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, गूगल एडवर्टीजमेंट है। ये सारे प्लेटफॉर्म का इफेक्टिवली यूज करते करते 20 ओवर तक पहुंच के आपको टारगेट अचीव करना है। आ रहा है समझ में? तो 20 ओवर की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जो चीज लगती है दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, सेल्स एंड। ये आपने समझ लिया, उसके बाद आता है आपका कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग इज इट्स लाइक अ वाटर। अभी मेरे को, मैं इतना बोलूंगा तो मेरे को प्यास लगेगी तो मैं थम्स अप लेने जाऊंगा कि पानी पीऊंगा? आई ड्रिंक अ वाटर। मैं भले कितना भी थम्स अप पी लूँ, कोको कोला पी लूँ, विस्की पी लूँ, बियर पी लूँ, बट कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे आई विल हैव अ वाटर, ठीक है। ऐसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कितनी ही स्ट्रैटेजी बना लो, वो स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन का जो फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज द कंटेंट। आप सुबह उठ के पहले आप लंच नहीं करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप? यू विल हैव अ वाटर। सो व्हेनेवर यू स्टार्ट डिजिटल की यार मस्त, राज सर ने आज बता दिया है सेशन में डिजिटल करना है मस्त, कल सुबह ब्रश करके अपन मस्त फ्रेश होकर डिजिटल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो जब स्टार्ट करने जाओगे तभी सबसे पहले क्या लगेगा आपको? कंटेंट। आपको वेबसाइट में कुछ बनाना है, यू विल मेक अ वेबसाइट कंटेंट। सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करना है, यू विल मेक द कंटेंट। सो नाउ कैन यू इमेजिन कंटेंट कितना पावरफुल है। सो कंटेंट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर कंटेंट लिखा कैसे जाता है, ठीक है, इसके अंदर आपको हेडलाइन कैसे बनानी है, कीवर्ड के बारे में कैसे रिसर्च करना है, बिकॉज यू वांट राइट कि गूगल में अगर कोई आपके बारे में सर्च करे तो लोगों को पता होना चाहिए। सो पूरी कंटेंट की चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हो, और ये चीज़ सीखने के बाद कंटेंट के अंदर तेरा एन नंबर ऑफ जॉब्स जो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट के बारे में और बहुत चीज़ें आपने बता दी है कि कंटेंट में कितनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है, कंटेंट में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपको फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग करनी है, ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग रहेंगे जिसको घूमना पसंद है, जिनको खाना खाना पसंद है, जिनको कुकिंग करना पसंद है। तो ये सारी हॉबीज़ के ऊपर आप अपना एक अच्छा सा कंटेंट बना के और उसको अपने ब्लॉग पे डाल के कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। अभी आप बोलोगे सर ये कैसा पॉसिबल है,
हमने तो कभी देखा ही नहीं है। तो ये आपको मैं लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड के लिए बने रहिए, 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए बने रहिए। ठीक है, मैं आपको एक साइट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ट्रैवल से रिलेटेड है। और अगर आप लोगों में से किनको ट्रैवलिंग अगर पसंद है, आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सो आप कहीं ना कहीं इनके साथ कनेक्ट जो है कर पाओगे। एक मिनट, आपको ये वेबसाइट दिख रही है यहाँ पर? वेबसाइट दिख रही है? नो सर। अरे यार मजाक मत करो, दिख रही है आपको? मेरे को तो नो दिख। सर। No, sir. ठीक है, आई वाज जस्ट चेकिंग यू आर अलर्ट और नॉट। परफेक्ट, नाउ दिख रही है? यस सर। परफेक्ट। अभी आपके सामने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी जो दिख रही है, वो आप लोग जैसे ही थी 5-6 साल पहले। उन्होंने कंटेंट राइटिंग करना स्टार्ट किया अबाउट हर फेवरेट हॉबी। उसकी हॉबी थी घूमना, ट्रैवलिंग करना। सो यहाँ पे इनको घूमना बहुत पसंद था। सो ये बेसिकली उसने यूके में, आप लोगों में से बहुत सारे लोग रहेंगे जो जॉब कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, कॉलेज की लाइफ से तंग आ गए हैं, थोड़ी फ्रीडम चाहिए। तो ऐसा ही कुछ ऐना के साथ था। ऐना यूके में थी, जॉब कर रही थी, बोर हो रहा था, उसने जॉब छोड़ दी। उसके बाद वो इंडिया आ गई। लोग एक्चुअली इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं, इसने रिवर्स किया, वो और यूके छोड़ के इंडिया आ गई। और इंडिया के सबसे पॉपुलर प्लेस जिनके बारे में हम सब ड्रीम करते हैं बचपन से जाना, दैट इज गोवा। ठीक है, तो उन्होंने अपने सारे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करे। तो गोवा में उन्होंने घर बना लिया। तो गोवा में होटल कौन सी अच्छी है, गोवा में रिसोर्ट्स कौन सी? Voice is fluctuating. Sorry to interrupt, but आपकी voice fluctuate हो रही है. हम वॉइस आ रही है आपको प्रॉपर? हमारी वॉइस आ रही है आपको क्लियर? आवाज आ रही है क्लियर एकदम? Sir, अब better है. अभी बेटर है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, मेरा ठीक है, मैं करता हूँ। एंड सो यहाँ पे उन्होंने गोवा के बेस्ट होटल कौन से है, गोवा के अंदर बेस्ट योगा सेंटर कौन से है, गोवा के अंदर बेस्ट कसिनोज कौन से है, गोवा के अंदर कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ पे नहीं घूमना चाहिए, बेस्ट बीचेस कौन से है, और सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने एक अच्छे आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करे। और यही आर्टिकल्स लिख के उन्होंने बहुत अलग अलग ब्रांड्स, जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. उन्होंने गोवा के बारे में, टूरिज्म के बारे में अच्छे आर्टिकल्स लिखना चालू करे। तो गोवा टूरिज्म ने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली। उन्होंने थाईलैंड के टूरिज्म के बारे में आर्टिकल लिखना स्टार्ट करे, तो थाईलैंड टूरिज्म के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर ली। उसके बाद ये सारे पार्टनरशिप के थ्रू उसने पैसे कमाना स्टार्ट करे, ये बड़े बड़े ब्रांड के साथ टाई अप करके। आपको दिख रहा है स्काई स्कैनर, आपको दिख रहा है एक्सपीडिया, ये सारे अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप करके वो उनका प्रमोशन करती है। और पूरी वेबसाइट के थ्रू वो मंथ में 2 से 3 लाख रुपया घर बैठे कमाती है। कितना? 2 to 3 लाख। ठीक है, अभी ये 2 से 3 लाख रुपया जो कमाती है, ठीक है, ये कैसे कमाती है? अभी आप पूछोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, हमको भी बता दो, हम भी कमाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। किसी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वो कहीं ना कहीं बहुत सालों से काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सक्सेस मिला है। ओवरनाइट सक्सेस कोई इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं मिलता। हर चीज़ के लिए एक स्ट्रगल होता है, हर चीज़ बेसिकली आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैंने देखा है डिजिटल इंडस्ट्री में बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने देखे हैं कि हमने 7 दिन में करोड़ रुपए कमा लिए, हमने 15 दिन के अंदर ये कर दिया, हमने 30 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें कर दी। सारी फर्जी। कोई भी होता है सक्सेस के लिए लगती है सबके मेहनत। ठीक है, तो जो चीज़ें दिखती है सोशल मीडिया में, उससे इंस्पायर होके आप अपने विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करो तो अच्छा है। ये राज पटियार का था एक मोटिवेशनल कोट, और वहां से हम आते हैं लेक्चर के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको अलग अलग आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिया में घूमना है 3 महीने, कैसे घूम सकते हो आप? अगर ऑस्ट्रेलिया में रोड ट्रिप करनी है, कैसे कर सकते हो आप? आपको अगर ऑस्ट्रेलिया में $1 के अंदर रहना है, कैसे रह सकते हो आप? इनसाइडर ट्रिप है गोवा के बारे में। लेक्चर में यहाँ पे आर्टिकल पर अगर क्लिक करता हूँ, तो आर्टिकल और ये जो पूरा आर्टिकल ओपन हो रहा है, यहाँ पे जो इमेजेस दिख रही है आपको,
यहाँ पे गोवा की पिक्चर्स आपको दिख रही है, यहाँ पे उसके सारे एक्सपीरियंसेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, ये सारे चीज को बोला जाता है कंटेंट। क्या बोला जाता है? कंटेंट। Content. ठीक है, और ये पूरा कंटेंट उसने देखो, अभी उसकी बैक पैकर की गाइड है, वीजा कैसे लिया गोवा में, एक वीक कैसे घूमना है, लॉन्ग वीकेंड घूमना है, फ्लाइट के बारे में एक्सपीरियंस दिख रहा है आपको थॉमस कुक यहाँ पे। Thomas Cook. उसने इनडायरेक्टली थॉमस कुक का प्रमोशन कर लिया कि थॉमस कुक के साथ उसका एक्सपीरियंस कैसा था, तो थॉमस कुक वाले ने कुछ उनको पे कर दिया। आया समझ में? अभी थोड़ा थोड़ा कुछ तो आया ब्रीफ। हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो मैं आपको इतना ज़्यादा ब्रीफ अभी नहीं कर पाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक जो चीज़ें आती हैं वो समझ में आए। अभी आपको समझ में आया व्हाट इज ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग एंड हाउ वी कैन अनाउंस। Yes, sir. अभी आप बोलोगे सर मेरे को लिखना पसंद नहीं है, सर कौन लिखेगा, सर बोरिंग होता है इंग्लिश, सर इंग्लिश थोड़ी लिखने होता है, हिंदी में बोल दो तो लिख ले, इंग्लिश बहुत बोरिंग होता है। सो आप लोगों के लिए, those who are very procrastinated, those who are very bored of writing, आपके लिए एक अच्छी सी चीज आ रही है, दैट इज ग्राफिक्स। अगर आप क्रिएटिव हो बहुत ज्यादा, आपके थॉट दिमाग में, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ओवर थिंकिंग वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग रहेंगे जो ओवर थिंकर्स रहेंगे, बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक भी होंगे, ठीक है। सो उन लोगों के लिए बना हुआ है ग्राफिक डिजाइन। तो वी आर वेरी क्रिएटिव, आपको ग्राफिक्स बनाना अच्छा लग रहा है, आपको मीम बनाना अच्छा लग रहा है, आपको ब्रांड्स के लिए डिजाइन आपने देखी रहेगी ना, सब एनिमेशन। अभी ये दिवाली में आपने देखे रहेंगे एनिमेशन, दिवाली में बर्थडे ग्रीटिंग, सॉरी दिवाली ग्रीटिंग्स आपने देखी रहेगी, नए साल आपके लोगों ने करे रहेंगे, लोगों ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया रहेगा और आपके व्हाट्सएप को पूरा स्पैम बना दिया रहेगा, ठीक है। देखते जाओ, सब लोगों को दिवाली विश करी। तो ये बनती कहाँ से है? तो ये बनाने का जो काम होता है एकदम क्रिएटिव वाला, ये डिजाइनर करता है। और यहाँ पे आप बेसिकली सीखते हो डिजाइनिंग कैसे होती है। ये जब डिजाइनिंग आप सीखते हो तभी आप अपनी खुद की एजेंसी जब भी आप स्टार्ट करोगे उसके लिए डिजाइनिंग कर सकते हो, खुद की डिजाइनिंग एजेंसी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके आसपास जो भी कोई छोटे मोटे बिजनेसेस है, जैसे अगर कोई कैफेज है, कोई है, कोई ट्रैवल्स वाला एजेंसी है, कोई मेकअप सलून है, कोई रिटेल स्टोर्स है, ये सब लोगों के लिए आप अच्छा सा डिजाइन बना सकते हो। बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? हाँ यार, आवाज आ रही है मेरी? बना सकते हैं। मतलब जरूरत होगी उनको डिजाइनिंग की कि नहीं, इतना मेरे को बता दो। होगी। डेफिनेटली जब जरूरत होगी तभी वो ढूंढने जाएंगे कि नहीं जाएंगे कि यार मेरी डिजाइन कौन करके देगा, मेरे डिजाइनिंग वाली चीजें कौन कर देगा। तभी कौन प्रकट होगा? तभी प्रकट होगा वर्षा, तभी प्रकट होगी आप सब लोग कि हाँ देखो मैं आपके लिए डिजाइन करूंगी, मैं आपके लिए डिजाइन करूंगा। नाउ आई नीड अ स्पेसिफिक अमाउंट, अगर आप मेरे को पे कर पाओ। अभी उसमें क्या पेमेंट रहता है, क्या चीजें होती है, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो मेरे को अभी लगता है सबसे ज्यादा जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर कमी है, दैट इज ऑफ द प्रैक्टिकलिटी। मानते हो कि नहीं मानते हो? Right, sir. तो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes, मैं sir. मानती हूँ। ठीक है, और अगर आप ये मानते हो तो ये भी मानोगे कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की भी गलती होती है कि वो बहुत डर जाते हैं कहीं ना कहीं, वो क्लाइंट से मिलने या तो इंटरव्यू के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर जाते हैं, होता है। Yes, sir. आपको अगर पूछूं कि अभी चलो आपको इंटरव्यू फेस करना है, तो आपका इंटरव्यू होने वाला है, क्या बहुत इश्यूज आते हैं इसमें तो। you would be nervous even though you know everything, but still there would be a nervousness, there would be kind of a thing कि यार अभी क्या होगा, मेरे बारे में क्या जज होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. I Yes. don't know what they learn in their entire education means चलो हम 12th तक का अलग हटा देते हैं कि ठीक है वो एक हायर सेकेंडरी तक का, but at least in the college I don't know how they study, क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं। तब once जब MNCs के लिए जाते हैं तो ठीक है चलो बहुत प्रिपरेशन और वो सारी चीजें लगती है, बट वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स में भी अगर अपीयर नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग टू मच इन अवर एजुकेशन सिस्टम, वेरी मच। क्योंकि डेली मैं फेस करती हूँ कि देयर डिमांड्स आर टू हाई कि हमें आज ही में 1 करोड़, जैसा आपने बताया 7 दिन में लखपति बनना है, बट दे डोंट वांट टू वर्क ऑन देयर स्किल्स। That too motivates me कि yes Devata, you should enhance your skills once you are having expertise in HR,
you should go for the digital marketing as well. So somehow we should be update ourselves. Learning तो last long lifelong होनी चाहिए. इंडिया के अंदर लोग है ना अपने फोन के एप्लीकेशन अपडेट बहुत फास्ट कर लेते हैं, बट उसको अपडेट करने में वो कभी टाइम नहीं देते. Exactly. सो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन के ऊपर मैं जो रेगुलरली ट्वीट करते रहता हूँ. अगर आप मुझे ट्विटर पे अगर फॉलो करोगे तो आपको ऐसे एजुकेशन की बहुत सारी इंसाइट्स मिलती रहेगी. तो मैं बहुत चीज़ें, क्योंकि आई एम इनटू द एजुकेशन, तो आई लाइक एनालाइजिंग पीपल, देयर माइंडसेट, देयर थॉट्स एंड व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट मोटिवेट देम टू लर्न समथिंग. तो ये मैं देखते रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर. सेशन हमारा बहुत ओवरनाइट तक स्ट्रेच होता है, तो मैं अभी वहाँ पे थोड़ा उसको कट शॉर्ट करके विल कम टू द ग्राफिक डिजाइनिंग. तो यहाँ पे ये डिजाइनिंग की चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो और बहुत अच्छी खासी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज अ वेबसाइट क्रिएशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट. ठीक है, जो आपको लाइफ लॉन्ग, आप कहीं पे भी अटक जाते हो ना, मतलब ऐसे बोला जाता है अगर आपको किडनैप करके कहीं पे भी रख दिया जाए तो एक चीज जो आपको काम में आएगी जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा खासी सर्वाइवल कर सकते हो, दैट इज अ वेबसाइट क्रिएशन. ठीक है, तो वेबसाइट अगर आप बनाते हो, अभी वेबसाइट के अंदर जब मैं बात करता हूँ लोगों को लगता है सर वो प्लस आएगा, जावा आएगा, सर वो कोडिंग आ जाएगी, सर वो तो नहीं आता है मेरे को, कैसे होगा. सो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले तो ये आपको जानना जरूरी है, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, इवन दो यू आर मेकिंग अ वेरी प्रोफेशनल वेबसाइट. ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोडिंग. ऑल द थिंग्स दैट यू नो नीड टू नो कि आपको वेबसाइट में क्या कंटेंट रखना है, वेबसाइट का पर्पस क्या है. आपने अगर एक छोटी सी दुकान खोल के रखी है और दुकान के अंदर आपने, इमेजिन करो कोई कैफे आपने ओपन किया है, आपने उसको सजाया अच्छा है, बट आपकी डिश और आपकी रेसिपी टेस्टलेस है और आपने डिश में कोई भी टेस्ट नहीं है, तो दूसरी बार कोई बंदा आएगा आपके पास? No, sir. आपने वेबसाइट बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन कर ली, बट आपका कंटेंट एकदम अच्छा नहीं था, कंटेंट लोगों को समझ ही नहीं आया. कंटेंट लोगों को समझ नहीं आया तो बेचारे लोगों ने आपके कंटेंट के साथ एंगेज भी नहीं किया. एंगेज नहीं किया तो आपको बेसिकली उनकी लीड्स नहीं मिली. तो आपकी वेबसाइट बनाने का पूरा जो प्रयत्न है और परिश्रम क्या हो गया? Zero. यस और नो? यस. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हमारी वेबसाइट विजिट करी रहेगी, करी है कि नहीं करी है? करिए सर. अभी नहीं कर. आपने हमारी वेबसाइट करी, जिसने नहीं करी एक बार आप कर भी लेना. तो अब जब करोगे तभी आप देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसे कंटेंट मिलेंगे जहाँ पे आपको डिटेल भरने जाने के लिए बोला गया है. कूपन्स दिखेंगे आपको, वहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा, वहाँ पे काउंसलिंग वाली बहुत सारी एलिमेंट्स हमने एडॉप्ट करे हैं ताकि आप कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करो. और ये एलिमेंट्स को बोला जाता है कंटेंट. हमको पता लगे आपको क्या खाना है, जैसे हम जाते हैं रेस्टोरेंट में, सो इफ द शेफ अंडरस्टैंड. और लेट्स से अगर अभी आप किचन में भी जाते हो और आपकी मम्मी ने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, तो आप क्या एकदम खुश हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? यस और नो? यस सर. और समझो कि अगर मम्मी ने अभी लेक्चर के बाद करेले की सब्जी बना ली, क्या होगा? लाइक अरे यार क्या है, क्या करेला वगैरह. तो एग्जैक्टली व्हेन यू आर मेकिंग अ वेबसाइट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी वेबसाइट विजिटर को आपसे क्या एक्सपेक्टेड है और वही चीजें उसको डिलीवर करना. जब भी करोगे तो खुश होगा तो आपका प्रोडक्ट वो ले सकता है. और प्रोडक्ट सेल करने के लिए ही हम हमारी वेबसाइट बनाते हैं. है समझ लो. तो जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हो, कोई शो ऑफ के लिए नहीं, कुछ नहीं, ये मेक अ वेबसाइट फॉर जनरेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट डिटेल एंड देन द सेलिंग. अगर ये दोनों चीज क्लियर है तो सारी चीजें हो जाती. और बाकी वेबसाइट आपकी कैसे बनती है, क्या चीजें है, ये सब जो है आपको सीखना जरूरी है. और साथ में अभी जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जो हम डिस्कस कर रहे थे, प्रैक्टिकलिटी वाली बात एजुकेशन के अंदर, तो यहाँ पे वी ट्राइड आवर कि हम आप हर एक टॉपिक के अंदर आपने पता नहीं एनालाइज किया है हमारा, मतलब हर एक टॉपिक के अंदर आपको लास्ट में एक चीज दिखाई देगी, दैट इज दिस वन, प्रपोजल मेकिंग,
प्राइसिंग मार्केट में क्या चल रहा है, और अगर कोई क्लाइंट को और इंटरव्यू में आप बैठते हो तो आपको कैसे पिच करना है, ये सारी चीजें भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको यहाँ पे भी ये चीज दिखी रहेगी, आपको ग्राफिक्स के अंदर भी ये सारी चीज दिखी रहेगी। सो ये चीजें हमने एनालाइज किया कि लोग सीख तो सारी चीज लेते हैं, पर जब इंटरव्यू की बात आती है क्लाइंट के सामने तो दे लाइक अरे नहीं सर वो तो नहीं हो पाएगा सर, डर लगता है सर क्या करना। सो ये चीज हटाने के लिए यू क्रिएट अ प्रपोजल, आपको प्राइसिंग बताई जाती है मार्केट में क्या प्राइसिंग चल रही है, आप पूरे बैच के साथ पिच करते हो। ठीक है, जैसे मैं वर्षा को बोलूंगा कि चलो वर्षा आप इनको पिच करो कि अपनी सर्विसेज ग्राफिक डिजाइनिंग की आप दोगे। सो थर्ड पर्सन विल एक्ट एज अ क्लाइंट, वर्षा विल एक्ट एज अ ग्राफिक डिजाइनर, वो प्रपोज करेगी कि हाँ चलो ठीक है ये मेरी सर्विसेज है, आप प्लीज ये सर्विसेज आपकी बहुत जरूरत है, वो सवाल पूछेगा, वर्षा विल आंसर। तो व्हेन दे आर हैविंग अ Q&A, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, और टिल यू रीच द एंड आप यू विल बिकम मास्टर कि हाँ मतलब अभी क्लाइंट के सामने बैठने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में? आई नो आई एम थोड़ा बोर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, बट थोड़ा ठीक है। हाँ सर, आ रहा है समझ में। देन विल कम टू द, जैसे आपने वेबसाइट बना ली, जैसे मैं अभी आपको, आप लोगों में से किसी को फोन लेना है अभी, मतलब कोई देख रहा है कोई फोन लेना है, नया लैपटॉप लेना है, कोई कोई ऐसी चीजें लेनी है किसी को, अभी कोई देख रहा है अभी सर्च कर रहा है ऐसा? यस सर। क्या सर्च कर रहे हो आप? सर मैं सैमसंग के लिए फोन ही मतलब जाना है, सैमसंग में ही है, मैं अपना फोन सर्च कर रही हूँ। जस्ट अच्छा आई एम वेटिंग फॉर द न्यू ईयर ऑफर। न्यू ईयर ऑफर, ठीक है। कौन सा लैपटॉप लेना है आपको? सैमसंग का लैपटॉप लेना है? सैमसंग फोन सर, फोन। फोन का लेना है? कौन सा फोन लेना है आपको? सर जस्ट अभी वो डिसाइड नहीं है, बस सर्च कर रही हूँ अभी कि जो क्या भी है? एज सीरीज में। ठीक है, अभी हम करें आपके साथ, सर्च करें, आपको हेल्प करें थोड़ा सर्च करने में? सर सर चलिए हम आपको हेल्प करते हैं जरा। तो जैसे अगर आपको फोन सर्च करना है, क्या सर्च करोगे यहाँ पे आप? सैमसंग न्यू फोन्स। सैमसंग न्यू फोन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे डाला सैमसंग के नए फोन्स कौन से हैं, आपके सामने कुछ एडवर्टीजमेंट आ रही है? यस सर। Yes. कौन सी कंपनी की एडवर्टीजमेंट आ रही है यहाँ पे आपको? सर ये samsung.com। सैमसंग एडवर्टीजमेंट सर कर, अमेजोन। ये एडवर्टीजमेंट आपको सामने आ रही है, ठीक है। ये दो ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, हाँ मतलब सैमसंग और अमेजोन एडवर्टीजमेंट कर रही है। अभी सबसे पहले कौन सी वेबसाइट आ रही है आपको यहाँ पे? स्मार्टफोन सैमसंग। सबसे पहले कौन सी वेबसाइट दिख रही है आपको यहाँ पे? लेटेस्ट एंड्रॉइड। नहीं नहीं, वेबसाइट है सैमसंग। ये सर सैमसंग। सैमसंग। So Samsung.com. दूसरा नंबर पर कौन सा आ रहा है वेबसाइट? सैमसंग। ठीक है। थर्ड नंबर पे भी सैमसंग आ रहा है, फोर्थ नंबर पे भी सैमसंग आ रहा है, फिफ्थ नंबर पे कौन आ रहा है? गैजेट। गैजेट्स डॉट ndtv डॉट ठीक कॉम। है। उसके बाद कौन आ रहा है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ठीक है। उसके बाद कौन आ रहा है? Flipkart. मोबाइल्स। सैमसंग। Nike Mobile. उसके लास्ट, उसके बाद कौन आ रहा है? अमेजोन। अमेजोन। अमेजोन आ रहा है, ठीक नहीं, है। अमेजोन है, अमेजोन हम दिख रहा है आप लोगों को। Yes. अभी आप मेरे को बताओ कि अमेजोन बेचारा यहाँ पे बैठा हुआ है, आप जब भी गूगल पे सर्च करोगे तो आप नॉर्मली फर्स्ट वाले रिजल्ट पे सर्च एंटर करोगे अभी अगर आप सर्च करते हैं, या तो फिर आप नीचे आके अमेजोन पे क्लिक करते हैं? टॉप पे जो उस पे सर्च करते हैं। First वाले पे. जो नॉर्मली टॉप पे रहता है, हमारा टेंडेंसी है कि हम बिलीव ऐसा करते हैं कि जो फर्स्ट रैंक पे रहता है उसके ऊपर गूगल ने ट्रस्ट किया है, वो ऑब्वियसली बेस्ट है, भरोसे लायक है, इसके लिए ऊपर आप वहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है। तो अभी बेचारा जो अमेजोन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो अमेजोन के वहाँ पे जो भी पर्सन को सैमसंग का फोन लेना है वो जाएगा क्या अभी ये कीवर्ड सर्च करके? नहीं जाएगा। अगर वो नहीं जाएगा तो अमेजोन से No sir. फोन खरीदने की जो चांसेस थे कम हो जाएंगे कि बढ़ेंगे? कम हो जाएंगे। और जब कम हो कम हो जाएंगे जाएगा. अमेजोन को नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान होगा। तो अमेजोन क्या बोलेगा कि अभी मेरे को ये रैंकिंग पे नहीं रहना है, मेरे को कहाँ पे आना है? नंबर 1 पे आना है। कहाँ पे आना है? टॉप पे, नंबर 1 पे। तो उससे नंबर 1 पे आने से होगा क्या? उससे उसकी सेल्स ज्यादा होगी, उसको प्रॉफिट होगा, बस और विजिटर ज्यादा आएंगे उसकी परफेक्ट। पहले विजिटर्स आएंगे, विजिटर्स ज्यादा होंगे तो उनकी इंक्वायरी ज्यादा बढ़ेगी, इंक्वायरी होगी तो उसके सेल्स होंगे, सेल्स होंगे तो उनको रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू होगा तो प्रॉफिट होगा।
सही है। Yes, अभी sir. आपने जो चीजें सही है सर। ठीक है, ये आप लोगों ने जो चीजें बताई इसको हम बोलते हैं बेसिकली डिजिटल लैंग्वेज के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। आया समझ में व्हाट यू कॉल दिस। Yes, sir. सर्च इंजन मतलब क्या हो गया आपका गूगल। ऑप्टिमाइजेशन मतलब हमारी वेबसाइट अभी 9वें रैंक पे है, उसको हम लेके कहाँ पे आएंगे, पहले रैंक पे। और लेके आपकी प्रोसेस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी अमेजोन बोलेगा कि यार हमारे पास तो पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर भी हम 9th रैंक पे हैं। तो अभी आप समझो कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कितना बड़ा इंडस्ट्री है ये इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी नंबर 1 बट देयर वुड बी ओनली नंबर 1। एक ही नंबर वेबसाइट नंबर 1 पे रहेगी। ऐसा तो नहीं कि 20 वेबसाइट ऐसे ऐसे है हम भी नंबर 1 हम भी नंबर 1, ऐसा तो नहीं। जैसे IIT JEE की एडवर्टीजमेंट में आप देखते हैं ना, हम भी नंबर 1 हम भी नंबर 1। 10 कोचिंग वाले एक ही पर्टिकुलर पर्सन को अपने अपने कोचिंग का नंबर 1 बताते हैं, ऐसा तो हो नहीं पाएगा यहाँ पे। Yes, sir. यहाँ पे एक ही बंदा नंबर 1 पे रहेगा। सो ये नंबर 1 पे लाने की प्रोसेस है क्या। अभी बोलना तो बहुत ईजी है कि नंबर 1 पे आना है, बट एक्चुअली बैकएंड में क्या प्रोसेस होती है। क्योंकि अगर आपको लेट्स से कि अगर एग्जाम पे टॉप करना है तो ऐसा तो नहीं होगा आज सोच लिया और कल टॉप हो गया। उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, मेहनत करनी है, आपको किताबें पढ़नी है थोड़ी, वो जो बुक कॉलेजेस में करते हो आप। अगर देखोगे तो प्रैक्टिकल में कोई अलग चीजें तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है क्या है, जैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, एसईओ के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, सर्च कंसोल क्या होता है, गूगल के एल्गोरिथम क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, प्रैक्टिकल प्लगइन्स कैसे वर्क करते हैं, एसईओ के अंदर अगर आप कोई क्लाइंट के लिए काम करते हो तो क्या क्या मैट्रिक्स पे आपको काम करना है, एसईओ की स्टडीज क्या होती है, प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, प्राइसिंग। अगर कल जाके अगर किसी क्लाइंट को एसईओ करना है तो आपसे पूछेगा ना कि यार चलो हमको प्रपोजल दो, हमको प्राइसिंग दो, तो आपको कैसे देना है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हो। बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट मैं आपको ये सारी चीजें इंडिविजुअली थोड़ा डेप्थ में नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीजें हैं मेरे को पूछो, आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। देन कम्स द ईमेल। आपने वेबसाइट बना ली, आपने वेबसाइट पे जाके सब्सक्राइब भी कर लिया, तो जब सब्सक्राइब करते हो तो आपके फोन पे मेल्स आते हैं कि नहीं आते हैं। आते हैं। किसी कंपनी के मेल्स आते हैं, अमेजोन के आते हैं, फ्लिपकार्ट के आते हैं, के आते हैं, HDFC बैंक के आते हैं। तो ये मेल शूट होते हैं सॉफ्टवेयर से होते हैं। कभी सोचा आपने लोग क्लिक क्यों करते हैं, कहाँ से होता है ये पूरा एनालिसिस, कहाँ से जब भी आप Amazon पे एनालिसिस कैसे होती है, ये पूरी जो चीजें हैं, ये ईमेल कैंपेन बनने से लेके उसकी एनालिसिस तक की जो पूरी जर्नी होती है वो आप प्रैक्टिकली यहाँ पे बनाते हो। एंड विद द केस स्टडी ऑफ जोमेटो, इंडिगो एयरलाइन, पेटीएम, HDFC, जूम कार एंड फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनी के मेल आपके इनबॉक्स में पड़े हुए रहेंगे। सेशन के बाद एक बार उसको चेक करना, आपको पता लगेगा कि ये ईमेल मार्केटिंग क्या लेवल पे चलती है और इसके रिजल्ट कितने शानदार होते हैं। इसके बाद आता है सब लोगों का फेवरेट टॉपिक, दैट इज अ सोशल मीडिया वेरिफिकेशन। आप सब लोगों को कहीं ना कहीं एक चाह है कि मेरा भी ब्लू टिक हो, फेसबुक के आगे एक नीला बैज लगे, इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक होना चाहिए, टेलीग्राम पे ब्लू टिक होना चाहिए। सब लोगों की एक कहीं ना कहीं विश होती है कि नहीं होती है। बट आप लोगों को पता नहीं रहता है कि प्रोसेस क्या है। तो वी एक्चुअली कवर, मतलब ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर कोई ब्लू टिक वाली प्रोफाइल आपके सामने आती है तो एक भरोसा आपका बढ़ जाता है कि नहीं यार ये बहुत बड़ा ब्रांड है, ये बहुत एस्टेब्लिश, बहुत रेप्यूटेड है, इस पर भरोसा कर सकते हैं, इसके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, इसकी सर्विसेज ले सकते हैं। यस और नो? यस सर, सेम फीलिंग्स। ठीक है। सो एक्चुअली में ब्लू टिक मिलने की प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपका कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है, और क्या क्या आपको डूज एंड डोंट ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। बिकॉज ये जो डोमेन है ना, वेरिफिकेशन ऑन सोशल मीडिया, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी। बिकॉज हर एक इन्फ्लुएंसर्स,
हर एक यूट्यूबर चाहेगा कि हमको ब्लू टिक मिले, हर एक बड़ा ब्रांड चाहेगा कि हमको ब्लू टिक मिले। तो ये केस के अंदर आपको प्रोसेस पता है, सो यू कैन ऑल्सो ऑफर दिस सर्विसेज टू द अंडरस्टूड नाउ। Okay, sir. उसके बाद आता है नेक्स्ट इज कॉपीराइटिंग। Copywriting is like a most booming industry in the advertisement segment in 2021. मतलब कॉपीराइटिंग को बोला जाता है सबसे ज्यादा बूमिंग, बिकॉज कॉपीराइटिंग लीड्स इनटू क्रिएटिविटी। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आपके क्रश को प्रपोज करना है, तो दैट टाइम कितने क्रिएटिव हो जाओगे आप, यार मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा चीज करूंगा, विल डू रिसर्च एंड देन विल कम आउट विद द क्रिएटिविटी, राइट? एग्जैक्टली दैट वर्क्स इनटू द कॉपीराइटिंग। अगर मैं कल जाके ये प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ मार्केट में, सो ये प्रोडक्ट जो है इसका मैं ऐसी क्या चीजें यूनिक लाइन लिखूं ताकि लोगों के साथ दिमाग में स्टक हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने सुना रहेगा, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ये सुना था आप लोगों ने? Yes. नाउ परफ्यूम सेगमेंट के अंदर तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ परफ्यूम ब्रांड, बट अभी अगर यहाँ पे फॉग लिखा रहता तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली वो इमेज आ जाती है, अरे तो देखा हुआ ऐड देखा था, फॉग चल रहा है। Yes. इसको बोला जाता है कॉपीराइट। डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो ऐड कॉपी देखते हैं, इसको बोला जाता है कॉपीराइट। सो ये बनती कैसे है, बिकॉज अभी यहाँ पे आ गई क्रिएटिविटी। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई सिलेबस है, पढ़ लिया आपने कर लिया, यहाँ पे आपकी लगती है एक्सट्रीम लेवल की क्रिएटिविटी। ठीक है, अभी आपने एक ड्रीम 11 का देखा रहेगा कि ये छोड़ तो ड्रीम 11 पे टीम बना ले, ये छोड़ तो ड्रीम 11 पे टीम बना ले, देखा था आप लोगों ने? Yes, sir. क्या बोलते हैं कॉपीराइटिंग। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा रहेगा, देखो फॉग का केस स्टडी हो गया, ड्रीम 11 हो गया, स्विगी हो गया, फेविकॉल आपने देखा रहेगा, ये कोड किसका है, फेविकॉल का है। 5 स्टार के अंदर आपने देखा रहेगा, कुछ ना करके भी तो देखो, वो खड़ा रहता है, वो 5 स्टार खाता है, वो बोलता है कि प्लीज मेरे को थोड़ा हेल्प कर दो, हेल्प ही नहीं करता है, तो खुद ही हेल्प करती है तो फिर वो बच जाती है, तो बोलता है कि कुछ ना करके भी तो देखो। तो दीज आर द कॉपीराइटिंग। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिटिक्स। आप लोगों में से अगर किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, नहीं है, बट क्योंकि मैंने बुक लिखी है पॉलिटिक्स के ऊपर, तो मैं डेफिनेटली ये मैंने टॉपिक पर्सनली एड अप करवाया है, बिकॉज इंडिया 4 चीज़ों पे चलता है, ये आप अपने नॉलेज के लिए ध्यान पे रखना। एक है पॉलिटिक्स, एक है रिलीजन, एक है क्रिकेट, और 4th है बॉलीवुड। ये 4 चीज़ों के ऊपर अगर आप कोई भी कंटेंट लिखोगे इंडिया में, दैट वुड गो फेमस। क्या बोला मैंने? पॉलिटिक्स, रिलीजन, बॉलीवुड एंड क्रिकेट। ये 4 चीजों पे, ये 4 है इंडिया की नर्व्स। ये 4 चीजों के ऊपर आप कुछ भी लिखो इंडिया में, आप चल जाओगे। और पॉलिटिक्स जो है वो पूरे इंडिया का फोर्स काम है। इंडिया के अंदर आपके आसपास ही देखना, बहुत सारा युवा नेता आपको मिलेंगे, अपकमिंग यूथ पॉलिटिशियन मिलेंगे जो अपने बैनरबाजी कर रहे हैं, ठीक है, जिनको नेता बनना है, जिनको टिकट चाहिए। अभी टिकट ऐसे बैनर लगाने से तो मिलेगी नहीं, उसके लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपन करे तो आपकी वाहवाह होनी चाहिए, आपकी एडवर्टीजमेंट चलनी चाहिए। तो अगर आप थोड़े स्मार्ट हो तो आप सारे युवा नेताओं को, युवा एमएलएस को, युवा एमपीज को, मिनिस्टर्स को एक अच्छा सा प्रपोजल दे सकते हो कि सर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपकी पूरी ब्रांडिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। और आप मेरे को बताओ, नरेंद्र मोदी जी के 2014 इलेक्शन जीतने के बाद तो सारा पॉलिटिशियन सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए, सबको पता लग गया डिजिटल प्लेटफॉर्म की इम्पोर्टेंस। तो अभी सब लोगों को चाहिए कोई प्रोफेशनल पर्सन इसको अगर रन करता है तो दे कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. यू एक्चुअली लर्न कि कैसे प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, क्या क्या अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे फ्रॉम द पॉलिटिशियन, क्या क्या डूज एंड डोंट्स है अगर कोई पॉलिटिकल कैंपेन है, पॉलिटिकल क्लाइंट कैसे मिलता है, उसके लिए आपको वो कोचिंग वगैरह ये समझने की जरूरत है।
उसके बाद आता है सब लोगों का फेवरेट टॉपिक, दैट इज ई कॉमर्स वेबसाइट, कि सर मेरे को ना ऐसा प्रोडक्ट बेचना है, दिस इज माय प्रोडक्ट, इसको मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स बना के सेल करना चाहती हूँ, मेरे को अपना खुद का प्रोडक्ट लिस्टिंग चाहिए जहाँ पे मैं पेमेंट गेटवे डाल सकूँ, लॉग इन कर सकूँ, लोग साइन अप करें, मेरे को अमेजोन पे भी प्रोडक्ट चाहिए। तो सब लोगों के लिए यहाँ पे आप ई कॉमर्स हैज बीन वेरी डिमांड। कॉमर्स अगर आप नायका ही देख लो, नायका कहाँ पे था, और नायका देखो आज आईपीओ, वो जो लेडी थी उसने एज ऑफ 50 स्टार्ट किया था, मतलब अभी हम कितने यंग, स्टार्ट एज ऑफ 50, right now within I think 5 to 6 years she is the के अंदर सबसे ज्यादा उसका मतलब यंगेस्ट बिलियनर ऐसा बोला जाता है, मतलब वेल्थीएस्ट वुमेन तो इंडिया के अंदर, और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एट द एज ऑफ 50। और कहाँ से स्टार्ट करी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बना के कॉल्ड एज अ नाइका, जहाँ पे वो फैशन के प्रोडक्ट बेचती थी, और वही बिजनेस बड़ा हुआ। और देखो नाइका इज लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज अर्ली बेसिस ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट। हाँ वर्षा, सर वहां से आवाज थोड़ी खड़खड़ हो रही है ये खड़खड़ जहाँ से हो रही है, खड़खड़ आपकी साइड से। नहीं नहीं, मेरे साइड से किधर, मैं तो एकदम साइलेंट रूम में बैठा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कूलर की आवाज है या फैन की आवाज है। अभी बंद है, हाँ सर। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब लोगों का फेवरेट टॉपिक है। डोमिनोज पिज्जा, कि मतलब कभी भी खिला दो खा लेंगे, तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का एकदम पॉपुलर टॉपिक है। सो यहाँ पे यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम द क्रिएटर साइड। अभी तो क्या है, आप सोशल मीडिया पे, अभी कैसे मूवी चल रही है, आप ऑडियंस में बैठे हुए हो, अभी यहाँ पे आपको मूवी बनानी है खुद की, कि अगर मैं ऐसा कंटेंट डालूं ताकि फेसबुक पे लोग पसंद करें, इंस्टाग्राम पे पसंद करें, ट्विटर कैसे चलता है, लिंक्डइन कैसे चलता है, स्नैपचैट कैसे चलता है, स्पॉटिफाई पे क्या कंटेंट डालना है, कोरा पे क्या कंटेंट डालना है, उसके एल्गोरिथम कैसे वर्क करते हैं, इनको इतने लाइक्स क्यों मिलते हैं, हमको क्यों नहीं मिलते, इनको कमेंट्स क्यों मिलते हैं, इनके फॉलोवर्स क्यों ज़्यादा है, उनको ये कंटेंट क्यों डालना चाहिए, ऐड कैसे चलती है, ऐड कॉपीज कैसे होती है, क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे आपको सीखना जरूरी है, अगर आप प्रोफेशनली सोशल मीडिया सीखना चाहते हैं। इसका फायदा आपको ये मिलता है कि आप कोई भी क्लाइंट को जाके बोलो कि यार मेरे को, मैं तेरा सोशल मीडिया हैंडल करूंगा, वो डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट करके आपको दे देगा कि नहीं देगा। आपने अभी तक जितनी भी चीजें देखी है, कंटेंट लिखना, ग्राफिक्स बनाना, वेबसाइट बनाना, एसईओ हो गया, पॉलिटिकल कैंपेनिंग हो गया, ब्लू टिक हो गया, ये अलग अलग स्किल सेट आपने मास्टर कर ली, और ये 6 के 6 स्किल सेट पर आप अमाउंट अर्न कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली अर्न अ वेरी गुड मनी आउट इफ यू आर वेरी स्मार्ट। उसके बाद आता है आपका यूट्यूब। सो आई थिंक लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद आपने बहुत सारे लोगों को देखा रहेगा जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे चैनल है उनका, ब्लॉगिंग करना उनको पसंद है, इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में आना पसंद है, बहुत सारे लोगों को शौक है, दे वांट टू बिकम इन्फ्लुएंसर, राइट। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम, बिकॉज ब्रांड भी आप देखना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे आप देखो भी सूर्यवंशी जो मूवी आई थी, उसके लिए उन्होंने आशीष चंचलानी के साथ एक अच्छा सा मूवी प्रमोशन किया था। आपने देखा रहेगा बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स है, ट्रैवल ब्लॉगर्स है, क्रिप्टो ब्लॉगर्स है, कुकिंग है, टेक है, सो ये सारे लोग कौन इन्फ्लुएंसर। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो लोग बड़े इन्फ्लुएंसर है तो अभी हम नहीं बन सकते, आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। अभी ऐसा जरूरी थोड़ी आपको अगर शाहरुख ही बनना है, आपको सलमान खान ही बनना है, आप ओटीटी के एक्टर भी तो बन सकते हो ना अपने टैलेंट के थ्रू। तो इन्फ्लुएंसर के अंदर भी ऐसा ही है। सो यहाँ पे आपको अगर इन्फ्लुएंसर बनना है, फॉलोवर चाहिए, तो आपको कितना प्रोसेस क्या है, कैसे आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, क्या टूल्स इक्विपमेंट चाहिए, सोशल वर्क पीआर कैसे करना है। आपको देखा रहेगा सलमान खान बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन से करता है, शाहरुख खान मीरा फाउंडेशन से करता है, सोनू सूद बेसिकली हेल्प आउट करता है। ये सारे सोशल वर्क और पीआर होते हैं जिसके कारण उनकी ब्रांड वैल्यू बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिजिटल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे अलग अलग डिजिटल के कंपोनेंट है, जैसे क्रिकेट टीम में होता है ना, ऑलराउंडर है, बैट्समैन है, बॉलर है, एक ऑफ स्पिनर है, तो ये अलग अलग पार्ट्स है डिजिटल के इंडस्ट्री के जो मैं आपको बता रहा हूँ।
उसके बाद आ गया आपका गूगल एडवर्टीजमेंट। सो अभी आई थिंक हमने फोन सर्च किया था, आपको एड्स दिखी थी थोड़ी, सैमसंग की, अमेजोन की एड्स दिखी थी हमने स्टार्टिंग में ऊपर इमेजेस के साथ। Yes, sir. Yes. आप यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब में एड्स देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं सर। ये सारी एड जो है कहाँ से चलती है? बेसिकली गूगल एडवर्ड्स पे। तो उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? Search engine marketing. तो इसके अंदर आप गूगल पे एडवर्टीजमेंट जहाँ कहीं पे भी देखते हो, आप एप्लीकेशन पे एडवर्टीजमेंट देखते हो, गेम्स पे देखते हो, तो कहीं ना कहीं जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको एडवर्टीजमेंट का बहुत ज्यादा चस्का होता है। कहीं पे भी आपको एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं होगा नहीं दिख रही, हर जगह दिख रही है। इसका मतलब कोई ना कोई तो चला रहा है ना एडवर्टीजमेंट। देयर इज समवन who is running this advertisement, तो ये who is the someone? He is a Google advertiser। उसके बाद आता है वीडियो। नाउ अगर आप इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर बनोगे तो आप पहले क्या चाहोगे? वीडियो बनाना, राइट? आप वीडियो बनाना सीखना चाहोगे, वीडियो एडिटिंग करना चाहोगे। ये आपको पता ही नहीं, अरे सर वीडियो कहाँ पे, मेरे को तो पता ही नहीं है टाइटल कैसे एडिट करे, इफेक्ट कैसे डाले, ग्रीन स्क्रीन कैसे करे, ऑडियो कैसे एडिट करे, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट वीडियोस कहाँ से लेके। आप देखते हो ना ई कॉमर्स अमेजोन में सर्च करते हो, फोटोज आते हैं ना अलग अलग प्रोडक्ट के, कौन करता है वो बैकएंड टीम में ई कॉमर्स वाला बंदा करता है, वीडियो वाला बंदा करता है। ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं कैसे होती है, ये भी चीजें अगर आप सीखते हो तो वीडियो, मेरे को बताओ, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखते हो, आप ब्रांड्स के लिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, अगर आप खुद की वीडियो एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, क्लाइंट के लिए कर सकते हो। सर एक को वीडियो लगता है कि चलो दिवाली हो गई, अभी नया शॉप हम स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो बना लो। कोई नया स्टोर ओपन हो रहा है, वीडियो बना लो। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, वीडियो बना लो। सो दिस इज देयर इज अ फनल एंड ऑटो। अभी आप मेरे को बताओ क्या पाकिस्तान के सामने आई, ठीक है, क्रिकेट के लिए, तो हर एक प्लेयर को एक स्ट्रेटेजी बताई रहेगी कोहली ने, या मेरे को अभी ये खेलना है, ये बॉलर है उसको ऐसे स्ट्रेटेजी किया है, इसके सामने ऐसे नहीं, स्ट्रेटेजी बनाई रहेगी कि नहीं बनाई? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. फनल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ फनल। मतलब इज लाइक, फनल इज लाइक दिस। अभी ये देख रहे हो पानी ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ये स्ट्रेट है। अगर मैं उसको ऐसा करूंगा तो पानी ये साइड टिल्ट होगा, ऐसे होगा तो ये साइड टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। फनल इज लाइक, आप एक ऐसी फनल बना रहे हो, यहाँ से आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा, यहाँ से वो बेसिकली आप बारे में सोशल मीडिया पे जाएगा, यहाँ पे आते आते वो आपकी ईमेल सब्सक्राइब और फ्री साइन अप करेगा, उसके बाद वो आपसे डेमो लेगा, सब पूरी प्रोसेस अच्छी रही, फिर फाइनली जाके वो आपका कस्टमर बनेगा। तो ये जो पूरी जर्नी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? पूरा ये फनल। क्या बोलते हैं? फनल। कल जाके आपने खुद की फ्रीलांसिंग एजेंसी या डिजिटल एजेंसी स्टार्ट करी, वो आपकी वेबसाइट पे आया, वेबसाइट के आके उसको डिटेल अच्छी नहीं मिली, या तो आपने उसको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, या तो आपने सोशल मीडिया अच्छा नहीं, तो वो क्या करेगा, यहाँ से लीकेज हो जाएगी और यहाँ से वो निकल जाएगा। So we don't want any leakage into the funnel, so that is the reason you create a funnel. Understood now? मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको बताया, ठीक है। मेरे सामने तो मैं यही एग्जांपल दे सकता हूँ, if you give me any equipment I can give, but मेरे सामने अभी कोई equipment है नहीं। इसके बाद there is a freelancing, ये थोड़ा ऐसा पॉपुलर टॉपिक आया है जैसे फ्रीलांसिंग। सो फ्रीलांसिंग सब लोगों का बहुत पॉपुलर टॉपिक होता है। अभी आपने जितने भी टॉपिक्स अभी देखे, ये सारे ले लीजिए या स्किल सेट पकड़ लीजिए, उसके लिए आपको ऑफिस में रहना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि मैं ऑफिस में रहूं कि आप मेरे को सोशल मीडिया करना है, मेरे को गूगल एडवर्ड्स किसी क्लाइंट के लिए, मेरे को आई मीन ग्राफिक्स, कंटेंट, वेबसाइट बनाना, ये चीज मैं पूरे दुनिया में कोई भी क्लाइंट के लिए कर सकता हूँ, राइट। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है तो वो अगर मेरे को बोलेगा वेबसाइट बना, तो मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल थोड़ी करने जाऊंगा, वो तो मेरे को बता देगा ईमेल पे या जूम पे, मैं बना लूंगा उसकी वेबसाइट। मैं उसके लिए ग्राफिक्स भी बना लूंगा, उसके लिए कंटेंट भी लिख लूंगा, उसके लिए सोशल मीडिया भी कर लूंगा, उसका एसईओ भी कर लूंगा, उसके लिए वीडियो भी बना लूंगा, उसके लिए एड्स भी कर दूंगा, उसके लिए हर चीज कर लूंगा। तो व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग, आप फ्रीली काम कर रहे हो, आपको जॉब नहीं कर रही है, बस आराम से जैसे बैठे रहो और आप घर पे बैठे अपने मर्जी के हिसाब से आप काम करो, दैट इज अ फ्रीलांसिंग। यू वर्क विद द फ्रीडम, बिकॉज डिजिटल कम्स विद द फ्रीडम। The most important aspect of the digital is give you the freedom.
तो आपने लॉकडाउन में देखा रहेगा बहुत सारे लोग गोवा हिमाचल जाके एकदम वर्क फ्रॉम होम मतलब हर एक जगह बैठ के कर रहे थे। ये कौन थे? ये डिजिटल इंडस्ट्री वाले लोग थे। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है आपकी स्किल सेट, आपका नॉलेज, आपका लैपटॉप और आपका वाईफाई, बस ये 3 चीजें लगती है। लैपटॉप आपके पास है, वाईफाई आपके पास है और स्किल सेट है जो आपको सीखनी है। ये 3 चीजें आपने सीख ली तो आप ये सारे प्रोजेक्ट ले सकते हो। अंडरस्टूड नाउ? अभी कोई आपको प्रोजेक्ट देगा क्यों? तो आपकी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि यार चलो वर्षा कैन यू जस्ट आई एम लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर। तो वर्षा ने बोला ठीक है कैन यू हायर मी एज अ ग्राफिक डिजाइनर। तो मैं पहले देखूंगा ना कि वर्षा ने पहले काम किया है क्या, उसको नॉलेज है क्या, उसको स्किल सेट है क्या, वो काम कर सकती है क्या, वो डेडिकेटेड है क्या, सीरियस है क्या, ट्रस्टेड है क्या। ये सारे एलिमेंट जो है मैं ट्रस्ट करूंगा और वो जब चीजें होगी तभी हम इसके पहले पूरी प्रोफाइल बिल्टअप करते हैं। तो फ्रीलांसिंग जो चीज है यहाँ पे आप अपनी एक अच्छी सी डिजिटल प्रोफाइल बिल्टअप करते हो। आप भी करते हो ना, कोई नए पर्सन के बारे में अगर आप कोई अच्छा लगता है या तो फिर ऐसा चीज है तो आप सर्च करते हो, अच्छा ये है कौन, जरा गूगल सर्च करते हो, वेबसाइट पे जाते हो, सोशल मीडिया पे जाते हो, ठीक है अच्छा ये अभी आप मेरे बारे में भी करोगे सेशन के बाद, ये सर ठीक है बता रहे थे, सही बता रहे थे कि गलत बता रहे थे, सर है कौन, लेट्स डू सम गूगलिंग अबाउट सर। सो you'll search and then you'll form some opinion about me. This is basically how the client would do once you enter into freelancing, right? So this is how this entire freelancing works. उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड चैटबॉट। सो ये अभी एआई का जमाना है, तो यहाँ पे हम एआई भी आपको सीखना जरूरी होता है टू कीप अप विद द पेस। वी एक्चुअली बिल्ड द चैटबॉट। आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया कि कोई चैटबॉट के साथ ऑटोमेटिकली बातचीतें चल रही है, वो बोल रहा है आप जवाब दे रहे हो, अगेन वो कुछ बोल रहा है आप जवाब दे रहे हो और आप हो रहे हो कंफ्यूज, आपको लग रहा है कोई ह्यूमन बैठा है बट वो ह्यूमन नहीं है, वो चैटबॉट है जो आपके साथ बात कर रहा है। वो बिल्टअप कैसे होता है चैटबॉट, तो ये चीज़ आपको सीखना आपको जरूरी है बिकॉज चैटबॉट अगर अच्छी रहेगी सामने वाला खुश हो जाता है और आपका कस्टमर बन सकता है। एंड देन दिस इज द लीड जनरेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। आई थिंक हर एक बिजनेस के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ लीड। एंड देन फाइनली इज अ कैंपेन। तो अभी हमने प्रैक्टिस कर ली सारी, अभी हम आगे स्टेडियम मैच के दिन और मैच के ग्राउंड के अंदर ऑडियंसेस के सामने कैसे आप प्रेशर लेके परफॉर्म करते हो और रिजल्ट देते हो। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली कैंपेन यू लर्न कि अगर कोई से ये बॉटल है, ये बॉटल को फुल फ्लेज मार्केट में उतारना है, आपके पास बजट दिया हुआ है लेट्स से 10 लाख 20 लाख रुपए जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आप उसमें से कितना पैसा लगाओगे एसईओ में, कितना लगाओगे इन्फ्लुएंसर पे, कितना लगाओगे फेसबुक एड्स पे, कितना लगाओगे ट्विटर, कितना लगाओगे आप वीडियो यूट्यूब एडवर्टीजमेंट पे। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आपको रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है क्या होता है, दैट यू नीड टू लर्न बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू रन इंटीग्रेटेड कैंपेन, राइट? कि मेरे को अगर ये चीज करनी है तो मैं सिर्फ एक ही चीज पे फोकस नहीं करूंगा, आई विल रन द एंटायर कैंपेन। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिजिटल कैंपेन। तो ये चीजें आप करते हो। तो बस हमारा ज्ञान और भाषण यहाँ पे होता है खत्म। आपके सवाल में लेना चाहूंगा और यहीं पे होती है पूरी डिजिटल इंडस्ट्री शुरू और खत्म। और इसके अंदर मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज भी बताई, जॉब्स भी बताए, फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी बताई, स्टार्टअप कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो वो भी बताया। और ना मेरे पास टाइम था उस टाइम पे मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बताने की ट्राई करी है। अभी आपके अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उसको आंसर करूँ। सर मेरा क्वेश्चन है यस इशिका। सर, जैसे आपने बताया कि पूरा बेसिक एडवांस में सब कुछ सीखने को मिलेगा, एक एक टॉपिक, और सर्टिफिकेट भी है जहाँ आप इंडिविजुअल टॉपिक मतलब सर्टिफिकेट में सिखा रहे हो। तो जैसे मुझे सिर्फ फ्रीलांसिंग में ही जाना है क्योंकि डिजाइनिंग फील्ड में मुझे घर पे ही काम करना है, तो उसके लिए फिर क्या प्रेफर करूँ, मैं पूरा वो एडवांस सीखूँ या सिर्फ सर्टिफिकेट करूँ फ्रीलांसिंग में? मतलब मैं आपको पहले एक बार शेयर कर देता हूँ। देखो अभी जैसे ये आपने जो 19 चीज़ें सीखी है, ठीक है, ये 19 चीज़ें आती है मास्टर्स डिप्लोमा प्रोग्राम के। अभी से मैं यहाँ पे जो है एज अ ट्रेनर आया हूँ आपके सामने, ठीक है, नॉट एज अ। यस सर। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कोई चीज़ें यहाँ पे दूँ, बट ठीक है आपने सवाल पूछा है, मैं आपको हल्का सा ब्रीफ दूंगा, बाकी सारी टेक्निकल डिटेल्स आपको काउंसलर से मिलेगी, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे जो प्रोग्राम्स है, जैसे कंप्लीट प्रोग्राम जो है 19 मॉड्यूल का, ये आपका आता है मास्टर्स डिप्लोमा का प्रोग्राम, जिसके अंदर आपकी 19 चीज़ें कवर होती है।
अगर आपको बेसिक डिप्लोमा का प्रोग्राम करना है, सो उसके अंदर आपके 9 टॉपिक्स कवर होते हैं जो बेसिकली आपके बेसिक डिप्लोमा में आते हैं। एंड नाउ इफ यू वांट टू गो विद द सर्टिफिकेशन, इंडिविजुअली आपको सिर्फ फ्रीलांसिंग ही करना है। सो यहाँ पे हमारे टॉपिक वाइज स्पेशलाइजेशन है, तो यहाँ पे आपको अगर फ्रीलांसिंग मास्टरी करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। सो ये तीनों ऑप्शंस आपके सामने ओपन है कि आपको कौन सी चीज़ में जानी है। अगर आप इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग में जाते हो तो आपको फ्रीलांसिंग कैसे होती है वो चीज़ें सिखाई जाती है, जिसके मॉड्यूल और उसके कंटेंट अभी आपने देख लिए जो आपके सामने रखे गए थे। दैट इज हियर। आई थिंक आपने यहाँ पे जो देखा था फ्रीलांसिंग के अंदर, दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट यू गोना लर्न अबाउट द फ्रीलांसिंग। Yes, sir. Okay. So it's at the end of the day, it's your call कि आपको फ्रीलांसिंग सीखनी है या तो क्या करना है। बट डेफिनेटली आई वुड वांट कि आप कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करें, बिकॉज ये जितनी भी चीज़ें आपने देखी, आई थिंक ऑन सेंस आपने बताया कि आपको घर बैठ के करना है। सो आई थिंक ये जितनी भी स्किल सेट है इसके ऊपर आप, और जो भी एग्जिस्टिंग, मेरे को लग रहा है आप एनिमेशन और ये चीज़ में कहीं ना कहीं आपका है, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा स्कोप है, आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। Yes, sir. बट सी एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता क्या है। देखो, अगर अज्यूम करते हैं, ठीक है, कि आपके पास कोई बंदा आया या कोई क्लाइंट आया कि ठीक है वो एनिमेशन का काम आपसे करवा रहा है, वो खुश है आपसे बहुत, यू आर डूइंग अ अमेजिंग वर्क। सो अगर वो आपसे अगर एनिमेशन का काम करा रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का काम किसी से और से करवा रहा रहेगा, किसी ग्राफिक्स Yes, का sir. काम किसी और से करवा रहा रहेगा, कंटेंट का काम किसी और से करवा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो स्पेंड तो कर रहा है। So what I want ultimately is impressed with my service। आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना। अगर आप अमेजोन के पास क्यों जाते हो, आप सेटिस्फाइड हो अमेजोन से, राइट? इसके लिए आप अमेजोन से खरीदी करते हो, बिकॉज आपका भरोसा है। तो अगर क्लाइंट का भरोसा आपके ऊपर एक सर्विसेज के लिए, तो वो आपसे चाहेगा कि आप उसको दूसरी सर्विसेज भी दो। पहले पेटीएम क्या था, एक रिचार्ज था। अभी आप देखो पेटीएम बैंक बन गया, इंश्योरेंस है, बैंकिंग, टिकट्स, ये वो क्या क्या नहीं दे रहा, और लोग कर रहे हैं बिकॉज लोगों का भरोसा है पेटीएम। पेटीएम इज अ ब्रांड। Yes. I hope you understood what I'm trying to say. Okay. ज्यादा चीजें सीखूंगी तो और स्किल्स और आएंगे। हाँ, मतलब पीपल एट द एंड ऑफ द डे लोग आपको भरोसा करेंगे कि यार ठीक है इशिता, आप ये दे रहे हो, साथ में और क्या क्या चीजें दे रहे हो। Okay. आप आपका एग्जांपल देना, जैसे आपको अगर आपके नियर बाय अगर कोई स्वीट्स हो गया या फरसान की शॉप है, तो आप अगर कोई कोई एक रेसिपी खाने जा रहे हो तो आप बोल दोगे अच्छा ठीक है यार यहाँ पे और क्या क्या मिलता है, इधर और क्या क्या चीज है, Yes, sir. बिकॉज भरोसा है। Okay. Thank you, sir. और कोई? Sir, सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ओके, यू कैन। यार गन कौन? यस पूछिए। हेलो हाँ हाँ सर, पूछिए। मेरा क्वेश्चन है सर, आफ्टर द कंप्लीशन इसमें फिर कैसा रहेगा सर? आपका आवाज थोड़ा, आपका आवाज सर आवाज आ रही? आवाज रुक रुक के आ रही है थोड़ी, मतलब आ रही है जा रही है, ऐसा हो रहा है। अब आ रही है सर? हाँ मतलब रुक रुक के आ रही है, फिर भी आप कंटिन्यू करिए, मैं अब क्वेश्चन समझने का। आपका आवाज नहीं आ रही है, आप चैट विंडो पे आपका सवाल लिख लीजिए। आपका आवाज जरा भी नहीं आ रहा, आप चैट विंडो पे आपका सवाल लिखिए। ओके सर। हाँ, sir, यस am I यस audible? यस, यू आर ऑडिबल। Okay. Sir, I want to ask that as if I want to start up, like at a very initial of the meeting, you told कि startup का time अगर आपको startup करना है तो is it right time or not to startup? तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक आपसे एडवाइस लेना चाहूंगी कि अगर मैं खुद का फर्म स्टार्टअप करना चाहती हूँ तो किस तरीके से उससे प्रोसीड करूँ, और उसके लिए अगर मुझे सीखना है तो ऑब्वियसली वो एडवांस लेवल ही सीखना होगा या इनिशियल मैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट से स्टार्ट कर सकती हूँ और फिर आगे और सो ऑन स्टार्ट, बिकॉज गिविंग टू मच टाइम टू ओनली ऑन द लर्निंग स्किल इज लाइक मेरा प्रोफेशन भी अफेक्ट होगा। See, when you are planning to launch a startup, it is as important decision as you getting married, ठीक है? So ये इतना ही important decision। Sir, your voice is
हेलो, Hello, आ रही है मेरी आपको? not properly. अभी आ रही है? ठीक है. See, when you're planning to launch a startup, it is as important and crucial decision as you're getting married and finding a life partner. Because startup launch करना, ठीक है, it looks very cool, but actually it's a very tough task, ठीक है, which will exhaust you like anything, ठीक है. And since you said कि आप मतलब किसी और के साथ मिलके अगर स्टार्ट करना चाहते हो, सो उसके अंदर आपको ये भी देखना है कि आपके पार्टनर के अंदर क्या ऐसी स्किल सेट है जो आप में नहीं है, आप में ऐसी क्या स्किल सेट है जो उसमें नहीं है. बिकॉज दिस इज हाउ यू, इफ यू हैव अ पार्टनरशिप, इट्स लाइक समवन इज मेकिंग अप, राइट. यार आप में जो चीज नहीं है वो कर रहा है, उसमें नहीं है वो, आप कहीं ना कहीं चीजें कर रहे हो. सो दैट इज समथिंग. आप क्या स्टार्टअप करना चाहते हो वो भी इम्पोर्टेंट है. इज इट ई कॉमर्स स्टार्टअप, इट इज अ एजेंसी, इट इज अ क्रिएटिव स्टफ, वो चीजें भी इम्पोर्टेंट है. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपने इसका कोई पायलट रन किया है क्या, मतलब वो चीज़ चलेगी नहीं चलेगी, आपने मार्केट में कस्टमर से पूछा क्या, ठीक है. और अगर ऑडियंस से पूछा कि आप खरीदोगे क्या, पसंद करना अलग बात है, आप पे करोगे क्या प्रोडक्ट के लिए. सो इफ दे टेंड टू पे इट, सो वो कितना कंसिस्टेंट रहेगा. सो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बिजनेस मॉडल बनाना, लेके जाना, वेट करना, पेशेंस एंड एवरीथिंग. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपका स्किल सेट. द वाई डिजिटल मार्केटिंग इन द एजेंसी, बिकॉज अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो मार्केटिंग के बिना तो आपके पास आएंगे नहीं कस्टमर्स. आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे जाओगे तो आपकी एक न्यूज़पेपर ऐड में ही आपके लाखों लग जाएंगे, पैम्पलेट छपाओगे लाखों लग जाएंगे. तो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इसके लिए नहीं जा सकते. डिजिटल मार्केटिंग इसके लिए क्योंकि ताकि मेरी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कम होगी तो मेरा ROI बढ़ेगा. अगर मेरा 10 रुपये का प्रोडक्ट है तो मैं ट्रेडिशनल में जाऊंगा तो मेरा 7 रुपये तो मार्केटिंग में चला जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया. सो इफ आई स्पेंड अमाउंट ऑन डिजिटल, तो मेरी डिजिटल के अंदर 3 रुपये ही खर्चा होगा तो मेरा कॉस्ट मार्जिन बढ़ गया मेरा. So this is the reason you do as a founder. If you're launching a startup, so you need to act as a businessman and work कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, मेरा मार्केटिंग का एक्सपेंस कितना जा रहा है, मेरा स्टाफ का एक्सपेंस कितना जा रहा है, हाउ मच आई एम अर्निंग बेसिकली, ठीक है. व्हाट इज द अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग. अगर वो मेरा एक प्रोडक्ट ले रहा है तो मैं दूसरा प्रोडक्ट दे सकता हूँ क्या, तीसरा दे सकता हूँ क्या. So these are all the calculation as a founder that you need to make. But if you talk about specifically with the digital marketing will reduce your cost of marketing, reduce your cost of acquiring the customer. Getting it? So this is how digital would gonna help you under the same. Or abhi, if you're launching a startup and company, then your each and every skill would be tested. मतलब मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये. I have started in 6 years back. 6 साल ने मेरे को इतनी सारी चीजें सिखाई है, नॉट ओनली ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग बट ऑल्सो द फाइनेंस पार्ट, ऑल्सो द रिक्रूटमेंट पार्ट, ऑल्सो द डिजिटल मार्केटिंग पार्ट, ऑल्सो द सेल्स पार्ट एज वेल, also the communication part as well, also the professionalism as well. So it teaches you so many things when you're launching a startup. So वो success हो ना हो अलग बात है, but आप में skill set build हो जाती है. And when you talk about myself, so मैंने तो डिजिटल का बहुत अच्छी तरीके से यूज किया. मतलब लाइक आप लोगों ने हमारे बारे में गूगल में सर्च किया रहेगा, सोशल मीडिया पे यू फाउंड द कंटेंट, ग्राफिक्स, वीडियोस, हमारे आर्टिकल्स मिले रहेंगे आपको, हमारे बारे में सर्च किया, लिंक्डइन पे आप जाओगे, टेस्टिमोनियल्स देखोगे and everything. So it is a combination of everything that made you understand कि no, this is where you get a quality stuff, this is where you get a trusted thing, right? हम एक छोटा सा लैपटॉप, I mean छोटा सा पेन ड्राइव लेने के लिए you do 1,000 research, right? You read this, you read that, you read this. Now this is about your career. So obviously you'll do a research. Now can you understand कि हम लोगों ने कितना डिजिटल, हमने कहीं ना कहीं चीजें रखी रहेगी और हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा रहेगा. So करने के लिए it took us very good amount of time, but digital marketing played a very important role to expedite the process. अभी आप मेरे को बताओ, नाइका अगर 1990s में चालू होता तो इतना लेवल पे पहुंच पाता क्या? अगर 1980s में चलता तो नहीं होता, राइट? बिकॉज अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उसने 360 डिग्री यूज किया, तब जाके नाइका इतने शॉर्ट टर्म में इतने बड़े लेवल पे पहुंचा. और नाइका तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. अभी आप देखते रहना कितने IPOs आने वाले हैं और कितने अलग अलग सेगमेंट के IPO आएंगे. And these are all the digital companies. So this is the very right time. अगर हम बात करें, अभी हम बहुत नेसेंट स्टेज पे है. अगर स्टार्टअप्स की बात करें, स्टार्टअप अभी 6 साल पहले स्टार्ट हुआ. ये सब पेटीएम और ये सब चीजें 2013-14 में तो स्टार्ट हो गई. अभी इमेजिन करो
कि आप अभी आई थिंक बहुत सारे लोगों की एवरेज एज यहाँ पे 23 to 25 है। आप 20 साल के बाद इमेजिन कर सकते हो कि कहाँ पे चीजें होगी, NFTs, ब्लॉकचेन, टेक्नोलॉजी क्या लेवल पे होगा। एंड योर कंपटीशन वुड बी नॉट विद योर एज, जो हम टिपिकल कॉलेजेस में देखते हैं ना, ग्रेजुएट में कंपनी में गए तो MBA वाले वही बैच वाले compete कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 10-15 साल के बाद आपका कॉम्पिटिटर कोई 10वां के बच्चा रहेगा, कोई 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, कोई 11th का बच्चा, बिकॉज वो जब इंटरव्यू में बैठेगा तो वहाँ पे कॉलेज डिग्री मैटर नहीं करेगी। वहाँ पे अच्छा यू कैन बिल्ड अप दिस थिंग, यू नो द डिजिटल स्किल सेट एंड एवरीथिंग, यू कैन प्रैक्टिकली डू दैट, यू आर हायर्ड। बिकॉज जो हायरिंग वाला बंदा है, ही इज नॉट फ्रॉम अ टिपिकल 90s और 80s अंकल, ही इज अ न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर। गेटिंग इट? सो वहाँ पे रेफरेंसेस थोड़े लिफाफे दे दिए, थोड़े पैसे खिला दिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे आपकी स्किल सेट बोलेगी। तो समझ जाओ कि आपका कंपटीशन आने वाले 5-10 साल में कैसा होने वाला है। सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? अरे डेफिनेटली यू कैन आस्क 2 क्वेश्चंस। सर मेरी 2 कंपनी है, एक पैकर्स एंड मूवर्स, एक टॉप 10 अबाउट .net। तो मैंने बिजनेस गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग करा था, वो सस्पेंड हो जाता है सर बार बार। तो मुझे रीजन समझ में नहीं आ रहा, मैंने उसको 3-4 बार कर दिया है। मेरे को है ना पैकर मूवर की इंडस्ट्री का पूरा इन एंड आउट पता है, ठीक है। अग्रवाल पैकर्स हो गए, ये सारे हमारे कहीं ना कहीं ना, यू नो अग्रवाल पैकर्स कितने लेवल पे है। नहीं सर, एक और है टॉप 10 अबाउट .net, मैं वो थ्योरीज भी लिखती हूँ। नहीं, जो आप लिखती गूगल हूँ। लिस्टिंग की बात करा रहे हो ना, तो ये लिस्टिंग गूगल लिस्टिंग के अंदर जो भी इन एंड आउट चीजें होती है, ठीक है, क्या क्या लेवल पे लोग लिस्टिंग करते हैं, कैसे करते हैं ना, आई नो इट। और ये चीज गलत करते हैं लोग। पैकर मूवर्स के अंदर जो गूगल लिस्टिंग गूगल डिलीट करता है ना, ये हाँ कहीं ना कहीं, कि आप देखते हो क्या लिस्टिंग, आप देखते हो पर्सनली? हाँ सर, मैं देखती हूँ। ठीक है, तो आपने अलग अलग लोकेशन लिस्टिंग के लिए डाली रहेगी। सर अलग अलग नहीं डाली, जहाँ मेन ऑफिस रहता है ना वहीं का एड्रेस डाला है, वहीं का पूरा सब कुछ डाला है, लेकिन वो बार बार सस्पेंड करता है जब वो एड्रेस का इशू बताता है, कई बार नंबर का भी बताता है। हाँ, पैकर मूवर्स के अंदर इसके लिए होता है बिकॉज पैकर मूवर्स इज अ हेवीली कॉम्पिटिटेड इंडस्ट्री, जिसके अंदर आपकी लोकल लिस्टिंग और आपकी एडवर्टाइजमेंट, गूगल सर्च एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हमारे एजेंसी के अंदर ऐसे बहुत सारे पैकर मूवर्स के क्लाइंट थे, उसकी कॉमन कंप्लेंट यही थी, तो हमने रिजॉल्व कराई थी। सबसे पहले इशू वो लोग ये करते हैं कि वो लोग मल्टीपल लोकेशन पे लिस्टिंग करते हैं, और वहाँ पे लोकेशन में लिस्टिंग आप भी करते हो और साथ साथ में आपके कॉम्पिटिटर बिजनेस भी डेलिबरेटली करता है, और उसके बाद वहाँ पे वो गूगल का लिफाफा जो कोड होता है वो नहीं पहुंचता। गूगल को ऐसा लगता है कि बिजनेस है, और जब ये मल्टीपल टाइम्स होने लगता है तभी गूगल को ऐसा लगता है कि द ऑपोजिट पर्सन is deliberately trying to create the fictitious business which is not even existed there. So what he does कि आप वो लोकेशन पे आप कोई भी बिजनेस लिस्ट करने के लिए जाओगे, बिकॉज गूगल की डिक्शनरी के अंदर उन्होंने उसको परमानेंटली ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो वो आपकी लिस्टिंग को कभी रखेगा ही नहीं। सर अगर वापस से वही एड्रेस डालेंगे तो फिर इशू दिखाएगा, अगर दूसरा भी डाल रहे हैं तो भी इशू बता रहा है। नहीं, देखो ये पैकर मूवर इंडस्ट्री के अंदर होता है, मतलब ये जो मैं आपको प्राइमा फेस से बता रहा हूँ, जो आप मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अभी आपका जो केस है उसके लिए मेरे को स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा लोकेशन क्या है, कौन से नंबर है, क्या टेक्निकल डिटेल्स है, कौन सा मैपिंग है, ये मेरे को पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाके मैं आपको इसका आंसर दे पाऊंगा। बट अभी जितना आप मेरे को बता रहे हो, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। यही इसके 2 रीजन। गूगल 2 चीजें, मतलब गूगल 2 ही रीजन के साथ कोई भी लिस्टिंग बैन करता है। सबसे पहले जब आप डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो, और नंबर 2 आप फ्रॉड लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो। ये 2 ही रीजन के साथ गूगल करता है। Or I think there was one more question, Redmi Note after completion of the master course to what about internship? See, internship is guaranteed, so internship के लिए आपको ध्यान नहीं देना है। Job is also guaranteed, so job के लिए भी आपको ऊपर नीचे देखना नहीं है। The reason that we see this is right now in digital industry there is a huge demand of digital marketer and there is very limited supply. ठीक है, हमारा एक एप्लीकेशन है डिजिटल गुरुकुल का, जहाँ पे हम रेगुलरली स्टूडेंट्स को हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है अबाउट इंटर्नशिप, अबाउट जॉब, सारी चीजें हम सर्कुलेट करते हैं लोगों के साथ। एंड राइट नाउ वी आर फेसिंग अ ट्रेमेंडस ट्रेंड, जहाँ पे कंपनीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और वी आर नॉट एबल टू सप्लाई द कैंडिडेट्स। एवरी डे वी आर गेटिंग इट। जस्ट आज हमको हमारे पास अभी आई कांट शेयर अ स्क्रीन अभी, मतलब मेरे फोन पे है, तो आप एक बार ऐप हमारा विजिट करोगे, सो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। तो जब मैं बोलता हूँ ये चीज, तो इट्स नॉट ऑन एयर, बट एक्चुअली में
there is a huge demand of digital professionals. और कुछ सवाल आपके? Any more questions? आप कोडिंग सिखाओगे? इन सारे टॉपिक्स में कोडिंग तो दिखी नहीं मुझे। कोडिंग तो है ही नहीं, मैंने लेक्चर के पहले ही बोल दिया था कि कोडिंग नहीं, आप बोल रहे थे ना C++। अरे सर एसईओ में है ना? आपने सुना ही नहीं प्रॉपर, मैंने क्या बोला? C++, PHP, कोडिंग ये सब डिजिटल का पार्ट नहीं है। नहीं है। Sir, one question from my side, like usually clients जो हैं, जैसे हम वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट आप बनाना सिखाएंगे वो वर्डप्रेस पे बनाना सिखाएंगे, बट यूजुअली बहुत सारे क्लाइंट्स इस तरीके का डिमांड करते हैं ना कि हमें इस लैंग्वेज पर, जैसे C++, जावा, नोड.js, या देयर आर सो मेनी टेक्निकल लाइक लैंग्वेजेस आर देयर, और डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता है उसमें। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्लाइंट्स को इतना ज्यादा क्यों ये डिमांड होता है कि हमें इसी प्लेटफॉर्म पर हमारी वेबसाइट चाहिए या उसी प्लेटफॉर्म पर चाहिए। इसके व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट? आप कभी बॉम्बे विजिट किया आपने? बॉम्बे कभी आपने विजिट किया? इट्स लॉन्ग टाइम अगो, लाइक आई वाज चाइल्ड, लाइक काफी टाइम हो चुका है बॉम्बे। जब आपने बॉम्बे विजिट किया था, कहाँ कहाँ पे विजिट किया आपने? मुझे बच्ची थी तब गई थी सर, तो सिद्धि विनायक मंदिर और बीच पे गई थी। पूरे बॉम्बे में बहुत सारे मंदिर है कि नहीं? पूरे बॉम्बे में बहुत सारे टेम्पल्स है कि नहीं? यस आप सर, सिद्धि विनायक मंदिर क्यों गए? फेमस है वो बहुत, बस आपका और याद भी शायद इसीलिए है क्योंकि वो दैट इज वन ऑफ द आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका आंसर भी यही है, टॉप रैंकिंग। बिकॉज वो फेमस है। क्लाइंट को कुछ नहीं पता है, क्लाइंट को ऐसा है कि ये दुनिया बना रही है तो चलो वही बनाते हैं। क्लाइंट ने बोला दुनिया चल रही है इस पे, तो हम भी इसी पे चलते हैं। अभी भगवान तो सब जगह सेम ही है ना, सिद्धि विनायक पे भी वही गणपति है, यहाँ पे भी ये गणपति है। अभी ये क्या है कि सब जा रहे हैं इसके लिए हम भी चले जाते हैं। अभी लाल बाग का राजा है, 2-3 साल से देखा मुकेश अंबानी जा रहा है तो हम भी चले जाते हैं। तो बस ये तो वही है, गणपति तो हर जगह पे है, आपके घर पे भी है। तो ऐसे ही वेबसाइट जो है हर कहीं पे भी बना सकते हो ना। आपने हमारी वेबसाइट देखी, दूसरे किसी की वेबसाइट देखी, किसी ने बोला हम इस पे बनाएंगे, किसी ने बोला आप वेबसाइट किस पे भी बनाओ। आप भगवान के दर्शन करने के आपके मन में श्रद्धा ही नहीं थी तो आपको फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप जब वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट का कंटेंट भी अच्छा नहीं होगा तो आपके पास कस्टमर आएगा क्या? नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। और कोई सवाल आपके और आपके आजू बाजू से क्या से? No question. Ishita, you seems very silent. I think your answers are No, sir, no doubts. perfect. Either you understood everything or not understood. Sir, understood. Understood. अच्छा, कोई क्वेश्चन आपके और आपके बाजू में जो बैठा है उनका? नो क्वेश्चन। गैलेक्सी ए से आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। आपका मैं नाम? माय ब्रदर। हेलो, आप भी आ जाते सेशन में, मेरे को बहुत अच्छा लगता। सर मैंने आपकी शिफ्टिंग करवाई थी सर जी। ओह अच्छा। याद है सर, मैं आपके पास विजिट के लिए आया था। अच्छा विकास जी, हाँ विकास के थ्रू आपके पास कॉल आया था। हाँ, ये लॉकडाउन में आपका मैंने सामान शिफ्ट करवाया था पूरा ही। अच्छा आप ही ने करवाया था? जी जी, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ओके ओके सर जी। सर मैं बोला था वेबसाइट में जैसे जब मैं काम करता हूँ तो वेबसाइट जैसे ऊपर आ जाती है, फिर देन अगले दिन ही वापस नीचे हो जाती है वेबसाइट। ऐसा क्या है? उसका कुछ चेंज हो गया क्या कंटेंट गूगल का क्रोम? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी आप वेबसाइट पे, वेबसाइट की जो रैंकिंग डिपेंड करती है आपके कीवर्ड्स के ऊपर। हाँ आप कितनी बार उसको सर्च कर रहे हो, हाँ गूगल पे एक ही डिवाइस से, एक ही वाईफाई से, एक ही लोकेशन से, वही कीवर्ड से बार बार जब सर्च करते हो ना, तो हाँ गूगल आपको हमेशा अलग अलग रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करेगा। यस, ठीक आप है। लोगों ने नोटिस किया रहेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नहीं, जैसे अपन ने दूसरे की मेल आईडी से अपन ने सर्च किया, जैसे मैंने मेरे वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ मेरे आईपी से, है ना, और मैंने दूसरे की मेल आईडी से सर्च करा पैकर्स एंड मूवर्स इंदौर, है ना, तो वो फर्स्ट पेज पे बता रही है, ठीक है, मेरे से फर्स्ट पेज पे बता रही है। फिर देन फर्स्ट पेज पे जैसे दूसरे तीसरे नंबर पे आती है, फिर वापस बैक मार जाती है। सही है। मैं आपको क्या बताया, लोकेशन, लोकेशन। लोकेशन हो गया, सर्चेस हो गया, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपकी
रैंकिंग डिपेंड होती है। सबसे बेस्ट होता है आपको अगर रैंकिंग जेन्युइनली चेक करनी है, ठीक है, आप अपने फोन पे लैपटॉप पे वीपीएन सेट करो। वीपीएन। वीपीएन सेट करने के बाद इनकॉग्निटो मोड पे आप एक बार नॉर्मली सर्च करो, आपको खुद पता लगेगा कि आपकी जेन्युइन वेबसाइट की रैंकिंग क्या है। अच्छा। ठीक है, सारे कुकीज वगैरह सब डिलीट कर दो और आप एक पूरा वीपीएन सेट करके आप फ्रेश सर्च करो कि कहाँ पे आपकी रैंकिंग आ रही है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, एक गूगल सर्च कंसोल आपको पता रहेगा। सर्च Google कंसोल search के जाके अपने कीवर्ड्स के सामने आपकी वेबसाइट की क्या रैंकिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल पे करता हूँ सर जी मैं चेक। तो आपके केस में तो आपको बहुत पेड एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा दाम के अच्छा। इसके अंदर वो है। मैंने कीवर्ड वगैरह भी, जितने भी कीवर्ड है और मेरा कंटेंट है वो भी मैंने यूनिक, मैंने वेबसाइट को अभी 2 से 3 महीने हुए हैं। ऑल ऑफ इंडिया में मेरी जैसे 3rd या 4th नंबर पे ही चल रही है ना, कुछ जगहों पे तो पहले पेज पे, 2nd नंबर पे, 1st पेज पे ही चल रही है, जस्ट स्टाइल के ऊपर भी चल रही है कई पेजों पे। है ना, जो मेन मेन सिटी है ना, जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, यहाँ पर फर्स्ट पेजेस पे नहीं आ रही है सर। साफ हाँ जी। भेजो जरा, मैं देखता हूँ। जी जी सर, तो बिल्कुल यूआरएल बिल्कुल। भेजना, मैं एक बार चेक करता हूँ। अगर कुछ स्पेसिफिक, अगर कुछ हाँ चीजें हैं ऐसी अगर हमको करने लायक तो कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको सजेशन देता हूँ। जी जी। ठीक है। ओके। सर आई वांट टू आस्क समथिंग। अरे फाइनली, गुड मॉर्निंग लक्ष्य। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं ऐसा कह रहा था कि सर मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, और मुझे खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना है, बट सर नॉलेज कुछ भी नहीं, तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए? अरे नॉलेज ले लो और क्या। तो सर मतलब कौन सा कोर्स करना सही रहेगा और क्या चीज़ें करना रहेगी? आपके पास तो टाइम ही टाइम है यार, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो आपके पास, कॉलेज जाओ ही मत। ठीक है, कॉलेज जाने से कुछ नहीं होना है। और पूरा फोकस करो कि आप प्रैक्टिकल स्किल जितना सीख सको। कॉलेज में जाके आप है ना अपनी लाइफ खराब करोगे, एक्सेप्ट यू आर गोइंग इनटू द टॉप कॉलेजेस। अगर कोई हाँ बहुत, सर वो तो पता है। को भी पता है। ठीक है, सो हाँ सर। कॉलेज में जाने से अच्छा कोई ऐसी चीज पे आप फोकस करो जहाँ पे आप प्रैक्टिकली सीख सको। एंड आफ्टर लर्निंग डिजिटल स्किल्स, डोंट जस्ट जंप इनटू द स्टार्टअप। अभी मत करो, पहले 1-2 इंटर्नशिप करो, कोई बड़ी कंपनी में करो, सीखो पहले कि वहाँ पे क्या वर्किंग होती है, कैसे प्रपोजल ड्राफ्ट होते हैं, कैसे टीम में काम होता है, कैसे प्रोफेशनल लेवल पे चीजें हो रही है। वहाँ पे कॉन्टेक्ट बनाओ। कॉन्टेक्ट बनाने के बाद वहाँ पे आपके पास देखो, अकेले करोगे ना अकेले रह जाओगे। यू स्टार्ट हाँ अलोन। सर। आप अब यू लाइक अरे यार कोई है नहीं तो पहले, अभी क्या है कि आप पहले स्किल सीखो, उसके बाद इंटर्नशिप पे जाओ, वहाँ पे कॉन्टेक्ट करो, नेटवर्किंग बनाओ। देखो इंडस्ट्री में, कंपनी में थोड़े बहुत नेटवर्क बनाओ, देखो आपके साथ और कौन कौन है जिसको स्टार्टअप करना है। 2-3 लोग मिलके स्टार्ट करोगे ना तो आपको, आपका लोड कम रहेगा और आपको कंपनी अच्छी मिलेगी और आप कहीं ना कहीं अलग अलग एरियाज में फोकस कर सकते हो। और अभी क्योंकि इंटर्नशिप तक आपको नॉलेज मिल जाएगी कि अच्छा यार ये डोमेन बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी मार्केट में ये सर्विसेज ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, ये ऐसे क्लाइंट को रिसर्च करना, ये क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीजें आप थोड़ा वर्किंग करोगे, थोड़ा इंटर्नशिप वगैरह करोगे, थोड़ा काम भी करोगे, बिकॉज आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, उसका प्लान करो। फर्स्ट ईयर में हो ना, 3-4 महीने का कोई चीजें सीख लो, 2-3 इंटर्नशिप्स कर लो अलग अलग डोमेन के अंदर, कोई एजेंसी में करो, कोई कंपनी में करो, कोई बड़ी कंपनी में करो, अच्छा एक्सपीरियंस ले लो। और साथ साथ में पैरेलली भी आप फ्रीलांसिंग काम तो ले सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि नहीं ले सकते। आप इंटर्नशिप करो, काम लेना स्टार्ट करो, एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद तो बाकी तो सारे उसके अंदर फुल फ्लेज तरीके से आप वर्क करना स्टार्ट करो। जब ये आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हो गए, तब तक आपके पास इंटर्नशिप भी हो जाएगी, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। अगर एजेंसी चली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चली तो आपके पास आगे फर्दर स्टडीज के लिए आपके पास एक वर्क एजुकेशन, वर्क दिखाने के लिए हो जाएगा। सो थोड़ा एक बैलेंस करके चलो, ऐसा म्यूचुअल फंड। तो सर जैसे इसके सर अंदर, मैं सर जैसे इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो हाँ सर किसी में स्पेशलाइजेशन करना है या फिर मतलब सभी? देखो, अभी आप ये ऐसा हो गया कि अगर आप धोनी को देखोगे, ठीक है, सो धोनी ऐसा तो नहीं है ना कि जितने बॉल खेलता है सारे हेलीकॉप्टर शॉट मारता है, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर। वो डिफेंस करना भी उसने सीखा है, उसने ऑफ साइड भी सीखी है, उसने लेग साइड भी सीखी है, उसने कवर ड्राइव भी सीखा है, उसने बाउंसर भी खेले है। राइट, उसको आती सारी चीजें हैं, कंडीशन के हिसाब से वो खेलता है। अभी आप इमेजिन करो उसने सीखा ही नहीं रहता, वो ऑफ साइड ही खेलता, ऑफ साइड ही खेलता, तो क्या होता, वीकनेस पता लग जाती। हाँ सर। सो ऐसा है कि आपको चीजें सीख के सारी रखनी है, कल जाके ऐसा नहीं हो जाए क्लाइंट अपने को कोई पूछे और आप वहां पे हो जाओ जीरो और वहां पे अपनी इंप्रेशन हो जाए डाउन। ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया में क्या है कि जो दिखता है ना वही चीजें बिकती है।
सो दिखाने के लिए इंटेलेक्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आपके पास तो अच्छा खासा टाइम है, यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, इसका एक प्रॉपर प्लानिंग करके यूटिलाइज करो। ये मेरी एडवाइस है। यू डू इट फ्रॉम अस, यू डू इट फ्रॉम एनी अदर थिंग, बट यू प्लान आउट दिस थिंग। ये बहुत जरूरी है अभी। डोंट जस्ट जंप Okay, इनटू द स्टार्टअप। दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब ये एग्जीक्यूशन में टाइम आता है, चीजें होती है ना, तो थोड़ा मतलब है ना, चीजें हैं। अभी आप थोड़ा फोकस करो, नेटवर्किंग बनाओ, अच्छे लोगों से नेटवर्किंग बनाओ। कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ तो कभी मत बनाना, ठीक है। आप थोड़े इंटरनेट पर Okay, sir. नेटवर्किंग करो। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है जहाँ पे लोग बहुत अच्छे खासे नॉलेज है, चीजें कर रहे हैं अच्छे। मैं आपको बताऊं, ट्विटर के ऊपर आई सी पीपल एट द एज ऑफ 18, एट द एज ऑफ 20, उनके बहुत अच्छे नेटवर्क्स है, बहुत कम्युनिटी में काम करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर अच्छी सी चीजें बात करते हैं। तो ऐसे नेटवर्किंग पे रहो जहाँ पे आपका ग्रोथ हो। Okay, sir. ये फ्री की Sir, एडवाइस I have फॉर one दिस। question. तो यस सर एक चीज और पूछना थी यस। सर, इसमें जैसे बेसिक है और मास्टर है, तो मुझे मास्टर पे फोकस करना चाहिए अभी। वो आपका कॉल है। सी अच्छा। आई कांट बी बायस्ड ऑन एनीथिंग, इट्स योर कॉल कंप्लीटली। आपको चाहिए तो एक बार आप पूरी चीजें स्टडी करो, आपको कौन सी चीजें करनी है। बट मेरा जो पर्सपेक्टिव था आपको आंसर देने का, वो आपके करियर प्लानिंग के ऊपर था, ना तो कोई मैं प्रोग्राम आपको डेलिबरेटली प्रमोट करूँ। मेरा जो आंसर देने का जो चीज था वो था कि आपको ऐसे कुछ करियर प्लानिंग आपकी करनी चाहिए, और वहां पे अगर कोई डिजिटल स्किल सेट आपको हेल्प करती है, सो दैट वुड बी अ गुड ओके सर, थैंक यू सर। थिंग। सर, एज यू एडवाइज्ड कि पहले मतलब ये जो पर्सन थे उन्हें एडवाइस किया कि स्टार्टअप के पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना, एंड एज आई टोल्ड यू कि मैं खुद भी स्टार्टअप सेम डिजिटल इंडस्ट्री में ही करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, मैंने डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ में काम किया है, एंड लाइक इट माइट बी इट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग एचआर कि मैं ऑलमोस्ट हर स्किल सेट के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज, बहुत नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर पाई हूँ और थोड़ा अपडेटेड हूँ उस चीज से। तो आपके अकॉर्डिंग मिनिमम मैं कितना किसी और के साथ में काम करूँ, मतलब स्टार्टअप के पहले लगभग कितना एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए और फिर आई शुड स्टार्ट इट, और इज इट राइट टाइम टू स्टार्ट, जस्ट आई वांट टू स्टार्ट अप ना। नहीं, मैंने लक्ष्य को ये एडवाइस इसी के लिए दी बिकॉज लक्ष्य स्टिल इज इन द कॉलेज, ठीक है। आपके केस में ऐसा है कि आप ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का आपका एक्सपीरियंस है, यू वर्क एज एचआर, सो यू हैव इंटरेक्टेड विद द मेनी डिपार्टमेंट्स। सो आपको पता है Yes, हर sir. डिपार्टमेंट वर्क कैसे करता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे निकलवाने हैं, कौन कैसे काम करता है, एम्प्लॉइज को मैनेज कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी हो, यू हैव दैट आइडिया। सो दैट इज द रीजन यू कैन गो हेड विद द सेम। लक्ष्य के केस में ऐसा है कि लक्ष्य स्टिल आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की, तो उसको नहीं पता है अभी कि कंपनी में काम कैसे होता है, टारगेट्स क्या होता है, टीम कैसे मैनेज होती है, टीम को लीड कैसे करा जाता है। वंस लक्ष्य स्टार्टेड, अभी लक्ष्य के पास वो है ना, टाइम भी है, अभी वो फर्स्ट ईयर में, तो अच्छा खासा टाइम दे सकता है। In Yes, sir. your case, you already have experience, and since you are a HR, you know how to speak, how to communicate, how to convince, and everything. So you have that skill set. So maybe you can आप उस पर बहुत अच्छा खासा काम कर सकते हो। In the same industry like digital, I want to have my own digital marketing company. You can do that. You can do that. I can go for, but sir, with if I definitely I'll go for the certification course or diploma course. So in that case, I want your call and like कितना duration इसका minimum अगर मैं learning के लिए जाती हूँ diploma में या certification में, तो इसमें मुझे specific कितना time लग जाएगा पूरा learning में? See, I'll tell you first. If you're going for a complete program, that the duration will be 3.5 to 4 months. The regular classes should be there for 1 hour, and the rest of the assignments should be there that you need to complete. And since this entire program is a practical, तो यहाँ पे जो आपने चीजें देखी, यहाँ पे हमारे साइट से हम आपको वेबसाइट देते हैं, डोमेन देते हैं, होस्टिंग देते हैं, SSL देते हैं, प्रोफेशनल ईमेल देते हैं, ये बिल्ट अप द वेबसाइट। बिकॉज आप वेबसाइट बनाओगे, उसके ऊपर आप खुद SEO करोगे, वी गिव यू द पेड टूल एक्सेस एज वेल, सो जिसके ऊपर आप एनालिसिस सारी चीजें करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। एंड प्रैक्टिस विल बेसिकली मेक यू वेरी पॉलिश्ड पर्सन। अभी फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटा लेक्चर अटेंड किया, वेबसाइट पता लगी, बट अभी आपने उसके बाद वेबसाइट पे काम ही करना स्टार्ट नहीं किया, तो दैट वुड बी यूजलेस। सो मेजॉरिटी ऑफ योर वर्क वुड गो इनटू implementation of what you're learning under 1 hour. Okay, sir.
ठीक है, अभी आपने वेबसाइट आपको बनानी है फॉर एग्जांपल, तो आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा मेरे को कैसी वेबसाइट बनानी है, इंडस्ट्री में क्या टाइप की वेबसाइट चल रही है, कौन सा कलर चल रहा है, कौन सा फॉन्ट चल रहा है, क्या इमेजेस डालनी है, क्या सेक्शंस डालना है, क्या मेन्यूज डालना है, ये सारी चीजें। मतलब इमेजिन पैरेलली यू वुड बी एक्चुअली स्टार्टिंग योर ओन एजेंसी। मतलब ऐसा नहीं कि आफ्टर 3-4 मंथ्स बाद में आपको स्टार्ट करना है, पैरेलली यू कैन लॉन्च योर ओन एजेंसी। वेबसाइट है ना, स्टार्ट कर दिया, एसईओ है, खुद की एजेंसी का एसईओ कर दिया, सोशल मीडिया है, खुद ही एजेंसी का सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट कर दिया, कंटेंट है, खुद की एजेंसी के लिए कंटेंट सीख लिया। सो फॉर यू, फॉर एनी पर्सन हु आर प्लानिंग टू लॉन्च अ स्टार्टअप, this is something where you're learning and implementing immediately. And when you're working for yourself, अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हो और खुद के लिए एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, तो आप पूरी रात जाग सकते हो, बिकॉज वो खुद का है, इट्स योर ओन। Yes, sir. Okay, sir. Thank you. डिनर के लिए कॉल आ गया है, अभी जाता हूँ, आप भी जाओ डिनर करिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके, एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे आप लोगों ने। और मैं चाहूँगा आप कहीं पे भी जाए लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोग्रेस मिले करियर में। एंड अगर मेरी आपको कहीं पे भी हेल्प लगती है, वेदर यू ज्वाइन अ प्रोग्राम नॉट ज्वाइन, डजंट मैटर टू मी। I'm here basically just to give you idea and sharing my experiences of last 6-7 years that I do regularly, and that is the reason I shared my contact number as well. So अगर आप Zoom chat पे देखोगे आपको मेरा एक नंबर मिलेगा, that is my personal number. Wherever you stuck in your career, कि मेरे को जॉब करना है, स्टार्टअप करना है, where I'm stuck in digital or anywhere, just as a friend you can anytime contact me, WhatsApp me. I prefer a WhatsApp because I will be थोड़ा occupied में रहता हूँ सेशन में, so you can ping me on WhatsApp in case you need any career stuff। और कहाँ पे भी आप stuck हो, please don't WhatsApp में कि सर वो प्रोग्राम का ड्यूरेशन, सेशन टूल, उसके लिए there is a different department altogether, so I don't interfere into the same। मेरा काम है आप लोगों को डिजिटल के अंदर जो भी आपके डाउट्स है करियर रिगार्डिंग, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद, एंड एज अ फ्रेंड, एंड दैट टू एज अ अनबायस्ड। ठीक है, Yes, sir. चलो विदा लेते हैं आप लोगों से, बहुत अच्छे और बेहतरीन सेशन की। आपको पूरी फैमिली को आप खुश रहो एंड कोविड फ्री रहो, और आप लोगों से जल्द मुलाकात हो ऐसा मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, और आप लोगों की विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you so much, sir. Thank you so Thank much, you so sir. much.